Namaskar, Umesh. I welcome you from core of Hello. my heart at BC Bhagalpur. Sir, that voice is not audible. I think there is a some. देखो तो audible नहीं है. Hello. Hello, students, my colleague, all my colleague. I welcome Shri Umesh Kumar, Umesh Prasad Shah, who is very capable ITS officer, Indian Telecom Service. के ऑफिसर्स हैं and he is product of BIT Sindri, and in this way he belongs to our community from Bihar and Jharkhand, combined Bihar, and presently director security Calcutta, Department of Telecom Calcutta, and he was ex-director IT and e-governance chief executive officers of Jharkhand Communications Limited and CEO of ABVIL at Government of Jharkhand Department of IT and e-governance. This is his brief introductions about Umesh, and he did many work as a director IT in the Jharkhand for policy making and planning and mobile coverage, particularly in the rural area, and e-governance implementations of government of Jharkhand. And he did immense job in promoting BPO in Jharkhand in association with STPI, and created 12,000 seats BPO within short span of 2 to 3 years. And this is his achievement, and he is very sensible, and he has written a book, Kalpana Talkies. As I remember, Kalpana Talkies is our favorite destinations when I was a student at BIT Sindri. It is a cinema hall, Kalpana Talkies, and Umesh has written a book on this. So on our mental thinking, mental level in the young age, mental turbulence of mind, and many other things related with the young budding engineers. And on this issue, he has written a book with all the narratives, what he has experienced as a student and what the fellow students, friends experience. And on this particular mentality of the students, he has written a book named as Kalpana Talkies. And I hope Umesh will discuss on this book what he has written, what is the narrative. In this book, he will discuss in details. And he will also discuss, he is writing a blog on necessity and invention. I think Umesh will also cover this. And he has delivered lectures and how to learn in our life, whole life. And he has also, he will also discuss about the nature and ecosystems, and in our surroundings, other creatures like birds. And he will discuss also about the language of birds, how they are talking, what is the world of the birds. He will also discuss. So in this discourse, the topic of this discourse is very important, harnessing our potential and ability to become successful. This is the topic. Each and everyone has a potential to become excellent, to perform great things in the life. Each and everyone, we all have potentials. We all have endowments provided by the God, our consciousness level, our awareness level, our power of imaginations, our power to take decisions. All these are the endowments provided, gifted to us by the God. And that we have to harness by capturing knowledge to become wise by knowledge and develop our level of awareness so that I should be able to take decisions. So as a teacher, as a principal of this institute, it is my moral responsibility to nurture the young budding engineers to achieve a level of dignity in the life. And the life is nothing but it is a setbacks and achievements. One leg setbacks, another is the achievement.
we will go one leg down, one leg up, and there are number of ups and downs in the life. And with this trampoline of life, we have to grow. And I have to take decisions how our student will grow and how they should become a knowledgeable engineers in the knowledge society. Now we are living in a knowledge society where the human resources are treated like a commodity in the global market. And therefore, we have to produce a quality engineers embedded with knowledge, embedded with skills, embedded with right kind of attitude. And in my perspective, my understanding, I give first priority about the attitude. Knowledge and skills will automatically flow to you if you are able to develop a right kind of attitude. And with this objective, I have organized this discourse, and I have organized many discourse in the past how to develop a right kind of attitude for enhancing our capacity and capability as a human being. And so that we should become dignified like Umesh, dignified like many great minds, like Einstein, like Newton's, anyone, and any students, our students, go beyond the Newton, go beyond the Einsteins. These are the potential hidden inside you. And with this objective, I have organized this discourse, and I welcome Umesh again by core of my heart on behalf of BC Bhagalpur fraternity. And I request all my students and my fellow friends, my teachers, to give him a big applause clapping to welcome him. Thank you, sir. Okay. Now, Umesh, you may deliver the lecture on different aspects of life, harnessing our potential and ability. Okay. Umesh. Sir, once again, pranam and namaste to you and Professor Sasank Sekhar sir, Mr. Sumit and Mr. Dr. Rajesh. Actually, it is a really a good opportunity to me to connect with the new, the current batches of colleges, different engineering colleges. And sir, I am really thankful to you that you have given an ample opportunity to me to interact. And during the course of interaction, it is not only benefit the students of colleges, but also in turn, it also gives opportunity to introspect. So that today's chapter is today's discourse is based on the how to harness our hidden potential and ability. Actually, during the event from I think 8th, 9th class, we students generally study about potential energy. That the potential energy is nothing but a hidden energy. And as we know, if we increase the height of the object, its potential energy will increase. So, in simple language, in the general life, if we increase our ability, our thinking, our wisdom, our attitude, if we increase its height, our potential will increase. So during the discourse, I will try to address most of the point on the topic. And but the first point is that what is the potential energy and what is the ability? Actually, I think I will try to share my. I have prepared that one presentation so that I can stick to the point. One.
So this is a simple that definition of potential, that it is a latent quantities and ability that get developed and lead to a future success of or usefulness. So how we can know what is the potential is? Actually, before I start, I would like to share one story. A story is of the tiger and the kids of the sheep. तो हुआ ऐसा था कि एक बार एक जंगल में बहुत सारे जो झुंड को देख के एक जो फीमेल टाइग्रेस जो थी उसने उसके ऊपर अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद क्या हुआ कि वो थोड़ा ऊंची ऊंची जगह पे थी, ऊपर से उसने जो छलांग लगाई तो वो माँ बनने वाली थी। दैट टाइगर जो टाइग्रेस थी वो माँ बनने वाली। तो ऊपर से जोर से जो छलांग लगाने के चलते क्या हुआ कि उसको चोट लगी। चोट लगने से वो फिर उसके बच्चे अभी पैदा होने ही वाले थे, मतलब टाइम आ चुका था और उसके चलते भी थोड़ा वो भूखी रहती थी, ज्यादा उसको थोड़ा खाना चाहिए था। तो डेथ करते करते उसने एक छोटे से बच्चे का जन्म दे दिया। तो आप जानते ही है भेड़ काफी हृदय से काफी वो होता है, मैंने क्या कहते हैं, प्रेम करने वाला होता है, प्रेम। तो उसने देखा कि छोटा सा बच्चा आ गया, तो उन लोगों ने, उन भेड़ के झुंड ने उस बच्चे को अपने झुंड में शामिल कर लिया और उसी की जो वो लोग उसी को देखभाल करते करते उसको बड़ा करने लगे। धीरे धीरे वो भेड़ वो जो टाइगर का जो बच्चा था वो उस भेड़ के बच्चे के बीच में बड़ा होने लगा। एक बार तब तक कुछ बड़ा हो गया तो एक बार इस झुंड पे एक टाइगर का नजर पड़ा, तो उसने इसको चेज करना शुरू किया। तो सारे भेड़ भागने लगे, साथ में वो जो छोटा वाला बच्चा था जो टाइगर का ही बच्चा था वो भी भागने लगा। टाइगर उसका पीछा कर रहा था और ये सारे जो भेड़ की टीम जो झुंड थी और एक उसका जो साथी टाइगर साथी था वो भी उसके साथ भागता गया। इस टाइगर को समझ में नहीं आ रहा था, जो जो चेज कर रहा था, जो शिकारी टाइगर था, उसको पता ये लग रहा था कि वो भाग क्यों रहा है, ऐसा क्या है। वो भेड़ तो भाग रहा है, समझ रहा है कि वो मुझे खा जाएगा, लेकिन ये क्यों भाग रहा है। अब इसका अटेंशन उस भेड़ को खाने के बजाय उस टाइगर को पकड़ने का अटेंशन ज्यादा हो गया। खैर किसी तरीके से, चूंकि वो टाइगर का बच्चा भेड़ के साथ था तो वो उतना अपने आप को ट्रेन नहीं कर पा रहा था दौड़ने और हाउ टू हैंडल विद सिचुएशन, जिस तरीके से टाइगर्स के सिचुएशन होते हैं, तो उसमें अपने आप को वो ढाल नहीं पाया था। तो खैर किसी तरह से पकड़ा गया। जब पकड़ा गया तो इसने उसकी गर्दन पकड़ी। बोला यार तुम बता तू क्यों भाग रहा था। तो गिड़गिड़ाने लगना, मेमियाने लगा, जिस तरह से भेड़ मेमियाता है, छोड़ दे मेरे भाई, छोड़ दे, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं तो इसी तरह से घास चरने आ गया था, तो मुझे क्यों मार। इसको और आश्चर्य लगे, ये क्या हो गया भैया, ये टाइगर ये तो मेरे ही कुल का है और ऐसा क्यों कर रहा है। तो बोला कि नहीं नहीं, तुम डर क्यों रहे हो, तुम भेड़ नहीं तुम टाइगर। नहीं नहीं नहीं, हम तो भेड़ ही है, हमारा वो मेरे और साथी सब चले गए, मैं कैसे रहूंगा, मैं कैसे कहूँ जीऊंगा, मुझे छोड़ दो। हाथ पैर जोड़ने लगा। बोला अच्छा रुको। उसने उसकी गर्दन पकड़ी, गर्दन पकड़ के एक नजदीक में तालाब था वहां पे ले आया। उस बोला उसमें वो पानी के तालाब में, बोले देख इसमें चेहरा तुम्हारा दिख रहा है। बोला कि हाँ। अब बता मेरा चेहरा और इस तुम्हारा इस पानी के अंदर का चेहरा में क्या डिफरेंस है। बोला कोई डिफरेंस नहीं है। बोला तुमको यही बताना चाह रहे हैं मेरे दोस्त कि तुम भी टाइगर थे, लेकिन तुम भेड़ के चलते भागे चले जा रहे थे, अपने आप को भेड़ समझ लिए थे। मैं तुझे खाने के लिए नहीं, तुझे बताने के लिए आया हूँ कि तुम भी टाइगर है। तो टुडे सेशन इज टू डिस्कस दैट वी आर ऑल्सो द टाइगर। हम लोग ऐसा नहीं है, डे टू डे में हम लोग क्या किए हैं, बहुत सारी जिंदगी की जद्दोजहद कहिए या ये फेसबुक सोशल साइट के चक्कर में क्या हो गए, हम लोग ज्यादातर बाहर की दुनिया की तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं। वी आर बाउंड टू, वी आर एक्चुअली हम लोग ऐसा इस तरीके से अपने आप को, वी आर नॉट अ फ्री मैन, वी आर लाइक अ स्लेव। क्या होता है, हम लोग आज के जैसे रिसेंटली आपने देखा होगा, देयर वाज अ challenge, couple challenge. So everybody was putting their couple photo on the Facebook and they would like that हमारे और आपके जैसा विल अंगूठा का जो होता है ना
लाइक डिसलाइक का उसमें फोटो डालेंगे. सो वी आर मच वी हैव डाइवर्टेड आवर माइंड टुवर्ड्स द आउटर वर्ल्ड, कि किस तरीके से लोग हमें हमें जज करते हैं. और जो लोग जज करते हैं, हम लोग अपने आप को वैसा समझने लगते हैं कि शायद हम ऐसा है, या यदि वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मुझे जज न करे या मुझे कह दे कि मैं अच्छा नहीं हूं, तो शायद मैं अच्छा नहीं हूं. ऐसा ऐसा एक माहौल बन गया है ड्यू टू, क्योंकि हमारा ज्यादातर इंटरेक्शन एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ ज्यादा हो रहा है. तो हम लोग जो एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो चीजें, जो एक्टिव चीजें हैं, जो कैटलिस्ट जो है वो एक्सटर्नल वर्ल्ड है, नॉट अ इंटरनल वर्ल्ड. तो but the potential is your hidden energy. It is not dependent on the external world. So what you will do, how you can identify what are those potential are. तो क्या करेंगे, how you will identify कि क्या आपकी potential actually है. तो before harnessing the potential we have to know about our potential. तो potential तो hidden है, ये हमारे अंदर है. तो हमें अंदर में झांकना पड़ेगा. और झांकना कैसे, इट इज नॉट सो इजी कि ये कह दिए कि तो झांकना पड़ेगा. आई हैव गिवन वन दैट, अभी मैंने एक कोट अपना दिया है. आई थिंक दैट वो कोट कोई मैंने बाहर से नहीं लिया था. यू कैन फाइंड ऑन द सोशल मीडिया. सोशल मीडिया पे मैं भी जाता हूँ, बट मैं ज्यादा देर के लिए नहीं, 10 to 15 मिनट्स डेली. तो मैंने मेरे दिमाग में भी बैठे बैठे एक सप्ताह अंदर की बात है, मेरे दिमाग में ये बात आया कि व्हाट इज द सोल. अभी बच्चे कहेंगे, जब मैं भी स्कूल कॉलेज में पढ़ता था तो सोल और ये सब चीजों से मैं भी दूर रहता था. लेकिन चलिए कोई बात नहीं, एज पर डिस्कशन ही थोड़ी देर के लिए हम बात करते हैं व्हाट इज द सोल. तो डे टू डे के हम लोग घरों में ये पढ़ते आए हैं कि हमें लाखों जन्म लेने पड़ते हैं. एंड जो आत्मा है वो क्या करती है, वो कितना अपनी लड़का है पार्टिसिपेंट, वो अपना क्या है, वो अपनी चोला बदलती है. इट चेंजेस द बॉडी, बट सोल वही है. सो सोल हैज लिव डिफरेंट लाइफ, मेनी लाइफ इट हैज ऑलरेडी पास. तो जब सोल की इतनी सारी लाइफ पार कर गया है, तो इट इज माइट बी पॉसिबल दैट इट हैज अ वास्ट एक्सपीरियंस. तो one if one connect with his own soul, it might be possible that he will know everything. ऐसा हो सकता है कि सोल में हर जिंदगी, हो सकता है कि क्या पता कि आप ही में से किसी का, वो जैसे सर ने भी बताया, आइंस्टीन का सोल हो, एंड ही हैज उस समय आइंस्टीन के बॉडी में पैदा लिए, आज भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पैदा ले लिए. तो आपको जब उसके पास जाएंगे, then I think we can know the real truth about ourselves. तो बच्चों के लिए एक हम लोग क्या कहते हैं कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च. पता नहीं कभी हम लोग रहे होंगे, कौवे की जिंदगी भी हम लोग जिए होंगे, हो सकता है बगुले की भी जिंदगी जिए हों, और हो सकता है स्वान का भी जिंदगी जिए होंगे. ऐसा कहा जाता है कि ग्रेजुअली सोल ऊपर आता है बहुत जन्मों के पार करते हुए. तो उनके अंदर भी अच्छी अच्छी पॉसिबिलिटी, अच्छी अच्छी चीजें हैं. तभी तो उसका एग्जाम्पल दिया गया है, काक चेष्टा. तो उस जो काक की चतुराई, ध्यान से देखिएगा, काक की चतुराई को बहुत ध्यान से देखिए. बको ध्यान, हमने बगुले की जो कंसंट्रेशन है उसको देखिए, उसके अंदर भी अच्छाई है. यानी कि यदि हो सकता है कि ये लाखों जन्म में मैं इस जगह से क्रॉस किया हूं, तो ये हमारे अंदर हिडन है, हम इसको निकाल सकते हैं. तो क्या करना है, आई हैव गिवन 3 पॉइंट्स. आप इसको यदि देखें, हाँ, तो how we can identify our potential, and there are 3 ways. क्यों ऐसा, क्यों, why have I have given 3 ways. I have explored, I tried to क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम भी आपकी उम्र के थे, नाउ टुडे आई एम 50 years old,
तो जब हम भी 20, 22, 21, 23 के थे, तो हमें ये सब चीज़ों में उतनी आनंद नहीं आती थी। बट इट माइट बी पॉसिबल दैट हम लोग को भी ऐसा कोई अरेंज नहीं होता था। इस तरीके का कोई उस समय जब मैं भी इंजीनियरिंग कॉलेज में बीआईटी सिंदरी में था, तो इस टाइप का पर्सनालिटी डेवलपमेंट का हो तब, या कोई अपने मोरल वैल्यूज को बढ़ाना हो तब, या पोटेंशियल, जैसे यही टॉपिक ले लीजिए, हाउ यू हार्नेस योर पोटेंशियल। मेरा लैपटॉप नहीं है तो इट इज आई थिंक। तो आप देखेंगे क्या, मैंने देखा है, और आप यू ऑल्सो कैन ऑब्जर्व दैट, कि जब हम अपने दोस्तों के बीच में ही बैठते हैं, हमने देखा है बच्चे जब एक बच्चे के बर्थडे में जाते हैं, आफ्टर कटिंग द केक, वो एक कमरे में बैठ जाते हैं, दे स्टार्ट देयर इंस्टाग्राम और फेसबुक। बच्चे गए हैं वहां दोस्तों से बात करने के लिए, बट वहां क्या करते हैं, वो लग जाते हैं अपने मोबाइल के पीछे। इवन आप बहुत सारे फोटो शेयर होते रहते हैं कि बच्चे आपस में मोबाइल पे बात कर रहे हैं, लेकिन वो एक किसी फिजिकल जगह पे मिल भी रहे हैं। तो वी आर अननेसेसरी डिस्टर्बिंग आवर माइंड। माइंड को समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कि पहले आपने कहा कि मैं जा रहा हूं दोस्त से मिलने, तो माइंड इज नाउ ट्रेंड, वो अपनी तैयारी करना शुरू किया है बैकएंड पे कि किस तरह से वो बात करेगा, कैसे मिलेगा, कैसे अपना ड्रेस पहने, दाढ़ी बनाए, बढ़िया सा अच्छा सा बाल लगाए, कुछ बढ़िया से बना लिए हैं, बट वहां जाके मोबाइल देखने लगे। नाउ माइंड हैज डाइवर्टेड टू सोशल मीडिया। तो माइंड हैज टू डील विद द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। आप उसके सिंपल जिंदगी को कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं। यू आर अलाउइंग हिम टू फॉर मल्टीटास्किंग। आप मल्टीटास्क कर रहे हैं एट ए टाइम। तो हमें उसको सिंपल करेंगे, सो दैट जब हम सिंपल करेंगे, इक्वेशन को सिंपल करेंगे, इट विल वेरी इजी टू इंटर इनटू आवर इंटरनल वर्ल्ड। तो क्या है कि जब कभी भी हम जो चीज देख रहे हैं, अभी आप बैठे हुए हैं ना, आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो आप मेरे क्वालिटी ऑफ वीडियो पे मत जाइए, आप देखिए, आप सुनिए, बस इतना ही कीजिए। आप इसको खत्म करेंगे, ज्यादातर लोग अपने घरों में हैं, आप सोचिए, आप अपने कभी दादी को देखिए, तो इसके दादी अभी है, मेरी दादी तो नहीं है। मैं दादी से मैं भी बहुत प्यार करता था। जब मैं नौकरी में आ गया था अचानक, उसी समय वो 95-96 में, जब मैं हॉस्टल में था, शाम में घूमने कहीं चला गया था, उस समय मोबाइल था नहीं, और जबलपुर में था। तो जबलपुर में मेरे गेस्ट हाउस के केयर टेकर को खबर आया कि मेरी दादी का डेथ हो गया है। और वो जब रात में मैं घूम कर आया, तब तक मालूम हुआ कि जो ड्यूटी हो गया उसने बताया नहीं। तो मैं किसी रीजन से ज्वाइन नहीं कर पाया। खैर, जो अभी आप अपने साथ है, आप कभी प्यार से देखिए और सोचिए उनको चेहरे को, छोड़िए ओह सोशल मीडिया और इसको छोड़िए थोड़ा, जब देख रहे हैं तो देखिए। द माइंड विल डू ओनली द देखने का। माइंड का बहुत सारे फंक्शन कर रहा है, खाना पीना का आपको पचा ही रहा है, सांस ले रहा है, ये का इनवॉलंटरी एक्टिविटी है। देखिए कितनी सुंदर उनकी झुर्रियां हैं, जब आपको बचपन में उठाए होंगे कितनी सुंदर रही होंगी बचपन में। पापा को ध्यान से देखिए, जब वो बचपन में आपको डांटते थे तो किस तरह से महसूस होते थे, उनको थोड़ा आप अपने आप को केवल देख रहे हैं तो देखिए, खा रहे हैं तो खाइए, प्रकृति को देख रहे हैं तो प्रकृति को देखिए, चिड़िया को देख रहे हैं, बस देखिए, उसी को देखिए, जो चीज देख रहे हैं जो आई। क्योंकि आप क्या है, यू आर डाइवर्टेड टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड। तो जब बाहरी दुनिया को देख रहे हैं तो आप केवल देखिए, नहीं ऐसा नहीं, देखिए भी और अंदर में भी कुछ सोचिए, दैट इज नॉट गुड। देख भी रहे हैं और अंदर में भी सोच रहे हैं, तो ये सिचुएशन कॉम्प्लेक्स हो रहा है। तो क्या होगा, जब आप देखेंगे तो आप एक्सटर्नल वर्ल्ड से सेटिस्फाई होंगे, देन यू विल ट्राई टू कम इनटू इंटरनल वर्ल्ड। क्योंकि आपको वो अपनी पोटेंशियल, क्यों ये बता रहे हैं कि क्योंकि आपको यू विल हैव टू फाइंड योर पोटेंशियल। तो पोटेंशियल के लिए माइंड को पहले शांत होना चाहिए, और शांत होने के लिए उसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को आपको ही इजी करना पड़ेगा। ये चेन है, एक चिकन और एग की कहानी है, कि आप एक्टिविटियों को शांत करेंगे तो माइंड शांत होगा, जब माइंड शांत होगा तो आप एक्टिविटी को, इस तरीके से आप फाइनली एक लेवल पे आएंगे। जो आप कहने का ये मतलब हुआ, यू ट्राई टू लिव इन द प्रेजेंट। आप प्रेजेंटली, आप पहला क्या है, सी व्हाट यू सी। ऐसा नहीं कि आप, वो एक मैंने एक हाथी का फोटो दिया है, क्या है वो, एक अंधे की तरह नहीं कि उसका कान देख रहे हैं तो कान के बारे में सोच रहे हैं कि हाथी सूट की तरह होगा, उसका हाथ पैर देख रहा है, या पूंछ देख रहे हैं सांप की तरह होगा, नहीं।
हाथी जब देख रहे हैं तो पूरी तरीके से हाथी को देखेंगे। खैर चलिए, अब हाथी मेरा खत्म हुआ। अब हम फील व्हाट यू फील, मतलब कि जब हम बाहरी, मैंने अपने दोस्त से मिल रहे हैं तो दोस्त से बात करेंगे, मेरे दोस्त अपने गर्लफ्रेंड से मिल रहे हैं तो उससे बात करेंगे, बात करके काम खत्म। अब हम अपनी पढ़ाई के लिए आने वाले हैं, पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई ही करेंगे, किताब पे ही ध्यान देंगे, वो करेंगे, माइंड शांत होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। ऐसा कहा गया है कि जो नॉन वेजिटेरियन फूड है दैट इज कॉम्प्लेक्स फूड, और जो वेजिटेरियन फूड है वो सिंपल, मतलब उसके जो इंटरनल बनावट है, जो जो भी केमिकल बनावट है वो सिंपल है, तो वो शरीर के लिए ज्यादा अच्छा था। क्यों? मांस के अंदर भावनाएं भी होती है, उसको जब काटा जाता है दर्द होता है, ये सारी चीज उसमें जुटी हुई होती है। कॉम्प्लेक्स तो जब आप खाते हैं तो कॉम्प्लेक्स इमोशन के साथ साथ जो भी वो प्रोटीन हो या जो भी उसके अंदर की बनावट होती है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। तो कॉम्प्लेक्स चीज हमेशा आपके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी पैदा करेगी। सिंपल, जब आप देख रहे हैं तो देखिए, बात कर रहे हैं तो बात करिए, जो सुन रहे हैं तो सुनिए। अब आइए, अब आप बाहरी दुनिया का, तो ये क्या है, जब कभी भी आप मॉर्निंग में बैठे या दिन भर यही इसको शुरू कीजिए आज से। आई विल इंश्योर यू दैट आफ्टर 7 days यू विल बी एबल टू नो योर ओन पोटेंशियल। आप आज से ही जिंदगी को थोड़ा शांत कीजिए, एक साथ सब काम मत कीजिए। सोच भी रहे हैं कि अरे यार मुझे तो यूपीएससी में टॉपर बनना है, और उधर गप भी मार रहे हैं, किसी को गाली भी दे रहे हैं, और साथ में व्हाट्सएप पे चला भी रहे हैं, सारे साथ एक साथ देखिए। गाली तो नहीं है दीजिए, लेकिन अदर अदर कोई काम हम करिए। सेकेंडली, फील व्हाट यू फील। तो क्या कीजिए नाउ, ये दिन भर के पहला जो था वो तो दिन भर की एक्टिविटी जिसको हमें दिन भर करना ही होता है। हम एक्सटर्नल वर्ल्ड में जी रहे हैं, आई विल हैव टू लिव इन एक्सटर्नल वर्ल्ड, बट द मॉर्निंग इवनिंग और जब कभी भी हम अकेले रहते हैं एट दैट टाइम हमें अपने बारे में, अपने साथ कनेक्ट होंगे, तब हम अंदर हाथ डाल पाएंगे। हमें अंदर में फिजिकल हाथ तो डालना नहीं है कि मुंह के अंदर डाल के हम अंदर से कुछ निकाल लेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो क्या करेंगे हम, पहले फील व्हाट यू फील, यानी कि सेंसेस में जब कभी आप मॉर्निंग में उठे, ट्राई टू 2 to 3 मिनट, नॉट मोर देन दैट, टू ट्राई टू फील योर हैंड पैर, ये फुट, एवरीथिंग, माइंड, शरीर कहाँ है इसको फील कीजिए। यू डिस्कनेक्ट योर, ये जो सेंसेस है जनरली क्या करता है, सेंस का रोल क्या है, इट इज कनेक्टिंग एक्सटर्नल टू द इंटरनल, है ना। एक्सटर्नल में जो आप गर्मी फील करते हैं, अच्छा सुंदर चीजों को देखते हैं, वो आपको कन्वर्ट करके आई क्या करता है, ट्रांसड्यूसर का काम करता है, चेंज करके क्या करते हैं, लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में भेज के माइंड में भेजता है। तो आपको, आप फील कीजिए, आप बढ़िया से फील करने की कोशिश, आपको खुश होने की कोशिश कीजिए। जो भी फील करते हैं, जो फीलिंग आपके अंदर है उसको अच्छा करिए, विविडली उसको देखिए, करने का मतलब ये होगा। एंड द थर्ड वन इज, मेरा चल नहीं रहा है, ठीक है, वो प्रेजेंटेशन में देर इज ए प्रॉब्लम। तो द थर्ड इज हियर व्हाट यू हियर, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जब आप मॉर्निंग में उठिए, आप अपने जिसको सोल की बात कर रहे हैं, भूल जाइए सोल कुछ है, बट देयर इज समथिंग, वो बहुत दिनों से आपको इंतजार कर रही है आपको कुछ कहने के लिए, आप उसको नजरअंदाज करें। जिस तरह से घर में बहुत बार जब आप बड़ा हो गया, जो भी लोग बड़े हो जाते हैं, माँ बेचारी कुछ कहना चाहती है लेकिन वो बच्चा आता है, हाँ मम्मी मम्मी खाना दे दो, खाए, अच्छा हाँ अच्छा ठीक है, कहना ना, कुछ कहना चाहिए, कहना ना, अभी हमको थोड़ा इस कॉलेज जाना है, अच्छा आ रहे हैं तब कहना। वो बेचारी कह नहीं पाती, ऐसा होता है, इट इज पॉसिबल। तो क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर इग्नोरिंग द सोल वॉइस, वॉइस ऑफ द सोल, मोस्ट ऑफ द टाइम। जब वो कुछ कहने के लिए होता है, यार शांत रह, अभी मुझे नींद आ रही, ओहो तुम चुप रहो, मुझे थोड़ा बाहर सोने दो, खेलने दो, घूमने दो। बट आई विल टेल यू, व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग और बिफोर, जब भी आप बिस्तर पे जा रहे हैं,
try to listen his voice because you will have to find your potential. और उसी के पास जो छुपा हुआ है वो खजाना को रखी हुई है, वो चाहती है आपको देना, बताना, और क्या कर रहे हैं आप लापता हो जा रहे हैं, आप उसकी बात नहीं सुन रहे हैं। तो सुनना पड़ेगा ना, अदरवाइज क्या होगा, कहेगा कोई, वो देखे थ्री इडियट्स, थ्री इडियट्स में क्या हो रहा था, थ्री इडियट्स में वो क्या रहा था, वो कोई किसी को पेंटर, ये क्या कहते हैं, फोटोग्राफर बनना है, किसी को कुछ बनना है, बट एवरीबडी इज गोइंग एज पर द विश ऑफ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो फादर कह रहे हैं, मदर कह रहे हैं, दोस्त कह रहा है, समाज कह रहा है, कॉलेज कह रहा है, हम उस पे अपने आप को चले जा रहे हैं। तो इस चीज को हमें, अब थोड़ा मैंने स्क्रीन ये कर दिया, तो हम उस वहां नहीं हमको जाना है, हमें कहाँ जाना है, हमें अपने आप को कनेक्ट करके हमें वो खोज के निकालना है कि उसमें छुपा हुआ क्या है, वो बताएगी मुझे। मैंने आई हैव रिटन वन बुक, दो इट इज इन हिंदी, ऑन बेस्ड ऑन द कॉलेज लाइफ, जैसे आप ज्यादातर लड़के कॉलेज लाइफ जी रहे हैं, इसी पे आई थिंक इट इज ए गुड बुक एंड एवरीबॉडी इज एप्रिसिएटिंग, ये इस बुक के बारे में एप्रिसिएशन काफी आ रहा है। तो मैं 3-4 सालों से सोच रहा था, मैं डायरेक्टर आईटी था, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर झारखंड कम्युनिकेशन नेटवर्क लिमिटेड का एक सीईओ था, काफी बड़ा पोस्ट होता है, एंड आई वाज आल्सो सीईओ ऑफ वन ऑफ द स्टार्टअप कंपनी। इट इज नॉट अ स्टार्टअप कंपनी, द कंपनी इज प्रमोटिंग द स्टार्टअप इन झारखंड। उसका नाम है, अभी ABVIL था, कभी झारखंड इनोवेशन लैब था, अभी क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी इनोवेशन लैब। And I think around we have nurtured around 400 startup, और झारखंड के 8-10 स्टार्टअप तो काफी अच्छे कर रहे हैं। During the that discussion, I will tell you some one success story. है, तो मेरे पास काम भी ज्यादा होता था, बट ये काम तब तक ज्यादा है जब तक कि आप शरीर के अंदर झांक नहीं रहे हैं। अब मेरा क्या था, मैं भी नहीं झांकता था, आज तो मुझे इसके साथ मीटिंग है, अच्छा आज तो इंटरव्यू लेना है, आज इस। फिर मैंने एक दिन बैठ के सोचा कि नहीं, मुझे बुक लिखना ही लिखना है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते थे, राइटर भी आते थे, वो बोलते सर आप डेली हाफ पेज तो लिखिए, हाफ पेज इज नॉट, इट इज अराउंड 500 वर्ड, आप तो शुरू तो कीजिए, बुक बड़ी चीज नहीं है, बट वो स्टार्ट नहीं होता है। तो मेरा ये कहना है कि जब आप इस चीज को बैठ के सुबह सुबह जब हम उससे पूछेंगे, we will have to connect myself to the our soul, जब हम उनसे उसकी लिसन करेंगे, लिसन our soul, क्योंकि इसके पास जन्म जन्म का अनुभव है, ये छुपा के रखे हुए है, इसके अंदर बंद है। इट इज इन कोडेड लैंग्वेज, इट डजंट हैव एनी वॉइस, इट डजंट हैव एनी लैंग्वेज। कोई ऐसा नहीं है कि आप एक मुंह पेट के अंदर एक कागज डाल दीजिए और बोलो बाबा तुम निकाल देना हमको, सब सुबह में उठेंगे वो एक निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। इट डजंट हैव एनी वॉइस, क्योंकि वॉइस पे बनाते तो वॉइस का तो क्या आता है, लैंग्वेज में बताते तो क्या है, हजारों लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में। तो बेचारे भगवान जी को तो हर वो तो क्या कहता है, उसको ट्रांसलेट करते करते गूगल का सहारा लेना पड़ता, ट्रांसलेटर का। इट डजंट हैव एनी, इसको वॉइस भी नहीं है, बोलता भी नहीं है। ये बोलने लगे तो आपका माथा पागल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके पास इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन है, बोलेगा तब क्या समझिएगा। और कौवा के आवाज, कौवा के समय का इसको बोलना शुरू करे तो आपका आवाज काव 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 आ जाएगा ना। तो इसको, इट हैज अ लैंग्वेज ऑफ साइलेंस, इसके पास कैसे समझता है। आप देखते हैं डॉग को आप थोड़ा मुस्कुराइए तो पूछी हिला के चलाता है, यहाँ लैंग्वेज है भाई, नो लैंग्वेज इज देयर, इज नो कम्युनिकेशन, एनी वॉइस और एनी रिटन कुछ तो नहीं है। ये जो आप समझ रहे हैं ना, ये समझ रहे हैं, जब डॉग को हंसे और वो पूछ हिलाते चलाया, ये यहाँ पे कम्युनिकेशन हुआ, कम्युनिकेशन किसी ढंग का नहीं हुआ, बट सोल के साथ यही कम्युनिकेशन। जब आप उसके पास जाएंगे
जब आप नजदीक जाएंगे, और नजदीक जाने के लिए मॉर्निंग इवनिंग आप यू स्टार्ट फ्रॉम टुडे, आज सोने से पहले यू स्टार्ट गिव 5 to 10 मिनट्स। वो इतने दिनों से आपको सुनाने के लिए बैठा है, आई विल हैव टू, अभी 7 दिन सुनना है, उसके बाद भी सुनते रहना है लेकिन अगले 7 दिनों तक तो सुनिए, वो कुछ बोलेगी, इट माइट बी इन ए कोडेड लैंग्वेज। हाँ, शेयर कर सकते हैं तो कर दीजिए, आपको मैंने दिया था। तो आप उसको क्या करेंगे, जब शेयर करेंगे, एक्चुअली मेरे पास मैंने स्लाइड का फोटो खींच के ये रखा था प्रिंट करके, तो आप उसको समझ पाएंगे। जब समझ पाएंगे, हाँ वेरी गुड, और बड़ा सुंदर, आप इतना बढ़िया कैसे कैसे कर लिए वेरी गुड। तो आपके अंदर की जो, एक्चुअली मेरे पास लैपटॉप आज नहीं है ना, मैं टैब से कर रहा था, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही। तो जब आप इसको डेली करिए, डेली 10 मिनट्स। अब इतना 3 चीज मैंने कहा, जो देखना है देखिए, जो फील करना है फील कीजिए, एकदम एक ही काम कीजिए, फील करना है तो फील ही करेंगे, और जब सुनना है दिल की तो सुनेंगे। इट माइट बी पॉसिबल दैट इस तीनों एक्सरसाइज के बाद, एक तो आपको डे टू डे है, सामने वालों को भी अच्छा लगेगा, जब आप उसके साथ बैठे हुए हैं तो आप केवल बात कर रहे हैं, उससे अच्छा लगता है आपके ध्यान। मेरा पता नहीं, अपने आप की ज्यादा बड़ाई नहीं करनी चाहिए, एक बड़ा बुरा आदत है, कोई भी बूढ़ा आदमी जब वो कहानी सुनाने लगता है तो मैं पूरी ध्यान से सुनता हूँ, एक एक लाइन उसको ध्यान से सुनता हूँ, और उसकी एक एक चीज को मैं वापस पूछता हूँ, ऐसा ऐसा क्यों। अभी हम गाँव जाते हैं तो कोई बूढ़ा उढ़ा लोग आ जाएंगे पड़ोसी उड़ोसी से, अरे बउआ कैसन है, का हाल चाल है, देखो ना ऐसा हो गए, ये हो गए। तो ऐसा नहीं कि उनके सुनते वक्त मैं मोबाइल देखता हूँ, नहीं देखता, और उनसे ड्यूरिंग उसको बड़ा अच्छा लगता है, इसीलिए दौड़े दौड़े आ जाता है। तो क्यों पूछेगा, आज के जमाने में किसी की कोई वैल्यू है, गाँव गाँव में भी किसी को कोई वैल्यू नहीं करता है, कुछ पोस्ट पे रहिए, उसको लगता है कि ये बच्चा जो है वो सुनता है। मेरी फुआ थी, वो खूब बोलती थी, हम पूरी, वो रहती थी कहाँ, दार्जिलिंग में, तो पूरे दार्जिलिंग के जो मोहल्ला था उसके बारे में हमको जानकारी आता था, जब जाते थे 1 सप्ताह के लिए, तो उसके पूरे मोहल्ले के बारे में, कौन महिला क्या बोलती है, क्या होता है, सब सुनते थे। बड़ा मजा आता है, वो आपसे प्यार करने लगेगा सामने वाला आदमी, जब आपको सुन, नहीं कि जो आप कर रहे हैं उस समय वही कीजिए, फिर आपकी जिंदगी में एक अजीब सा मैंने क्या कहें, एक बदलाव आएगा। तो इट माइट बी पॉसिबल, जरा स्लाइड चेंज कर दीजिएगा, इट माइट बी पॉसिबल दैट आपने इस तीनों के बाद अपना गोल को पहचान लिया। ऐसा हो सकता है कि आप अपने गोल को पहचान लीजिए, आपने अपनी पोटेंशियल को पहचान लिया, देन इट इज गुड। ये तो कंप्यूटर का लैंग्वेज लिखते हैं ना, जो चार्ट, फ्लो चार्ट बनाते हैं, इट इज लाइक अ चार्ट। लेकिन ऐसा इट माइट बी पॉसिबल दैट आप ये तीनों करने के बाद भी, ड्यू टू सम रीजन, यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई योर पोटेंशियल एंड एबिलिटी। एट द सेम टाइम, बेस्ड ऑन द पोटेंशियल एंड एबिलिटी, व्हाट विल बी योर गोल, आप नहीं जान पा रहे हैं क्या आपका गोल होगा। तो पोटेंशियल क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं, क्या होता है। आपने कभी देखा है एम्पलीफायर, एम्पलीफायर क्या करता है, एम्पलीफायर सिग्नल्स के स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है कि नहीं। इस पूरे आपके चारों तरफ टीवी का सिग्नल आ रहा है, तो क्या करते हैं आप, एक लगाते हैं वो सेट टॉप बॉक्स, और वो माने एम्पलीफाई करके आपके टीवी के उसमें स्क्रीन पे डाल देता है। सिमिलरली, जब आप माइक से बोलते हैं तो माइक क्या करता है, आप जो बोल रहे हैं उसको एम्पलीफाई करके स्पीकर में देता है, तो दूर तक सुनाई पड़ता है। तो आप क्यों नहीं सुन पा रहे हैं, इसका मतलब आपकी पोटेंशियल एनर्जी इज एट ए लोअर स्टेट, then you will have to increase its height। यहाँ हाइट का मतलब मैंने शुरू में ही बताया, हाइट इज डिफरेंट फॉर दिस। हाइट मतलब कि आपके अंदर जो अच्छी क्वालिटीज है, यू विल हैव टू इनहांस, सो दैट पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, तो वो लाउडर होगा। हो क्या रहा है, उस वो जो अंदर जो बोल रहा है उसके ऊपर बहुत गंदगियां जम गई है हम लोगों के ऊपर, डिफरेंट तरह का, ईर्षा की गंदगी, गुस्सा की गंदगी, मैंने 50 तरह के अहंकार की गंदगी जो बोलते हैं ना, इस तरह की गंदगी जम गई। तो क्या होता है, वो बोल रही है बेचारी,
तो बाहर निकल ही नहीं पा रहा है, वो बोल तो नहीं रही, वो तो सिग्नल भेज रही है। तो सिग्नल क्या होता है, देखिएगा सिग्नल, यदि दीवार का आप सिग्नल, जो भी इंजीनियरिंग के बच्चे होंगे पढ़े होंगे कि उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, सिग्नल फ्री स्पेस में बढ़िया से ट्रेवल करता है, ऑब्स्ट्रक्शन में कम ट्रेवल करता है, तो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो एनर्जी से ट्रेवल नहीं कर रही है। तो आपका जब एनर्जी ट्रेवल नहीं कर रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसी को बोलता है, भूल रहे हैं हम दोहा जो है कबीर या किसी का, सत्संगति से उसकी दोहा, उसका जो आपके अंदर ये गुण बढ़ते हैं। तो सत्संगति तो हम लोग अब कर नहीं सकते हैं, कहीं संत महात्माओं के पास जा सकते, बट दो तीन छोटी छोटी चीजें करके हमें लगता है कि वी कैन इंक्रीज आवर पोटेंशियल एनर्जी। जब हम हमारा पोटेंशियल एनर्जी करेंगे तो आप ऐसा करिए, समटाइम्स इंक्रीजिंग एनर्जी इज एज इक्वल एज उसका जो ऑब्स्ट्रक्टिव जो कोई ऑब्जेक्ट है उसको हटाना, यदि कि या तो एनर्जी को बढ़ाएं या बीच की दीवार को हटा दें, दोनों में से। तो दीवार को हटाने के लिए, बिकॉज सोल हैज सम एनर्जी, अब आप मेडिटेशन वगैरह शुरू करेंगे, देन नॉर्मली दैट एनर्जी ऑफ द सोल विल इंक्रीज। बट आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अच्छे गुण बदल के उसके अंदर जो गंदगी है उसको हटाए। तो गुण क्या है, गुण है जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्यारा गुण है, दैट इज द लव। वो खाली लड़का लड़के वाला लव नहीं, लव टू एवरीथिंग। आपके दोस्त ने, आपके दोस्त बहुत सारे भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में होंगे, बहुत सारे जब आप 12th किए होंगे तो आईआईटी में होंगे, और बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में गए ही नहीं। तो जब आपके कोई ऐसे दोस्त, उस डे को आप फिर से रिकॉल कीजिए मेरे बात करते वक्त, जब उसको आईआईटी में हुआ था, आपने खुशी मनाई थी क्या, उसके अंदर थोड़ी जलन आई थी क्या? यदि जलन आई है तो लव नहीं है, लव हो ही नहीं सकता है। अब किसी का बेटा का, अपना बेटा का कोई अच्छा टॉप कर जाए आईआईटी में, मेरी बेटी अभी एग्जाम दे रही है अभी अभी, तो टॉप कर जाए तो हमको खुशी होगी ना, वो ऐसा खुशी होगी जिसमें कोई जलन नहीं होगा। इसी तरीके से लव के, लव मतलब क्या है कि हमें उसके, अभी हम भी गांव में भी जाते हैं तो एक मेरे स्कूल में साथ पढ़ता था, खैर किसी रीजन से बेचारा कहीं नहीं निकल पाया, स्कूल से ऊपर नहीं पढ़ पाया, बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं, 10th के पहले ही ड्रॉप आउट होते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले, उसका नाम छट्टू है, तो कुछ दिन पहले नहीं, 3-4 साल पहले बाबूजी हमारे बोल रहे थे कि छट्टू का नाम छट्टू इसलिए है कि वो छठा भाई है। लेकिन आज भी वो ठीक है, वो खेत का काम उम करता है, दूसरे के यहाँ मजदूरी बेचारा करता है, लेकिन आता है तो मेरे साथ बैठता है, का हो, का हाल चाल है, जो वही बात करता है, आराम से प्यार से बात करता है। हो सकता था कि जब हम आपके उम्र में रहे होंगे ये अंदर हमारा डेवलप नहीं हुआ रहा हो, लेकिन आज हमने उसको डेवलप किया है। और अच्छी चीजों को जरूरी नहीं है वो अंदर था, लेकिन हम उसको डेवलप नहीं कर, अच्छी चीजों को डेवलप करने में कोई हर्ज नहीं है, किसी भी समय कर सकते हैं। आज की उम्र में भी डे टू डे हम लोग इस चीजों को करते हैं। तो इस पे कहानी, इट इज अ वेरी वेल नोन स्टोरी लव पे, कि एक आदमी था, कोशिश करना है कि 4 o'clock तक खत्म करना है ना, ठीक है फटाफट करते हैं। तो वो एक अपना, उसको पैर में चोट लग गया था, तो डॉक्टर के यहाँ गया हुआ था, इट वाज अराउंड 8:30। तो लाइन लगा हुआ था, जैसे हमेशा की तरह लाइन लगता है, तो लाइन लगा हुआ था, तो लाइन लगा, वो थोड़ा हल्ला हड़बड़ाने लगा, जैसे हम लोग हड़बड़ाते हैं। तो जल्दी जाना है, जल्दी देखना है हमको, अपने वाइफ वाइफ को देखने जाना है, वो शी इज हॉस्पिटलाइज, आई हैव टू मीट हर, एंड द टाइम इज 9 o'clock ओनली। तो वो उसको कंपाउंडर को बोला, था कंपाउंडर अंदर जाके बोला कि एक आदमी बड़ा परेशान है, उसकी वाइफ हॉस्पिटल में है और उससे उसको मिलने जाना है, ले आया। तो बोला अंदर, डॉक्टर बोला क्या परेशानी है आपको, वाइफ को क्या हो गया है? बोला कि शी इज सफरिंग फ्रॉम द अल्जाइमर, उसको अल्जाइमर की बीमारी है, और 9 o'clock में दैट जो हॉस्पिटल है, तो शी इज हॉस्पिटलाइज सिंस लास्ट 4 to 5 years। तो क्योंकि बाहर लाएंगे तो कोई देखने वाला तो है नहीं, अब अभी वहीं रहने दीजिए। हाँ,
उसको मुझे मिलना है, क्या 9 o'clock में उसको नर्स खाना खिलाने ले आती है। तो मैं अपना टिफिन भी साथे रखता हूँ, मैं बैठ के साथ खाता हूँ। तो बोले कि अल्जाइमर है तो वो तो पहचानती है आपको? तो बोला कि नहीं नहीं, वो हमको नहीं पहचानती। तो फिर आपको परेशानी क्यों है? बोला कि वो नहीं पहचानती है, लेकिन मैं तो उसे पहचानता हूँ ना। जब मैं शुरू से ही, हम लोग बैठ के नाश्ता करते थे, मैं तो उसको पहचानता हूँ ना, वो मेरी वाइफ है, ये तो मैं जानता हूँ ना। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ और उसको लगा कि इस बात में कोई दम है। अरे हम हॉस्टल में रह रहे हैं, हम अपने घर से बाहर रह रहे हैं, हमें यदि अपने घर वाले से प्रेम है, प्यार है, उनकी आशाओं से प्यार है, वो क्या सोच के हमें भेजे थे कि बच्चा गया है तो अच्छा करेगा। हो सकता है हॉस्टल में रह रहे, वो देख नहीं रहे हैं। कैसे देखेंगे बेचारे, कोई दूरदर्शी तो है नहीं। लेकिन यदि हम ये सोच रहे हैं कि वो देख नहीं रहे हैं, लेकिन उनका जो विश्वास है, उनकी जो चाहत है, उनकी जो कामना है, दैट इज ट्रेवलिंग विथ मी, वो मेरे आगे पीछे अगल बगल में है। तो कैसे हम गलत करेंगे? हम पढ़ाई के समय पढ़ाई करेंगे ना, ताकि सिनेमा नहीं ना देखेंगे। अभी तो मतलब कोरोना टाइम में आप नहीं देख रहे होंगे, अच्छी बात है। घर में लेंगे, रह रहे हैं, घर में है। हमारा प्रोफेसर चाह रहे हैं कि अच्छा लड़का करे, मेरे कॉलेज का नाम हो। इट इज कैरिंग विथ यू, यू आर कैरिंग देयर व्यू। कि कॉलेज चाहता है कि उसके बच्चे भी यदि अच्छे करेंगे तो उनका भी नाम आएगा, रैंकिंग सुधरेगा, आप अलग अलग जाएंगे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में आप अच्छे अच्छे पोस्ट पे जाएंगे। तो ये उनके प्रति आपका प्रेम है। आपका दोस्त, आपका घर वाला चाहता है आप अच्छा करें, आप चाहते हैं। तो ये जो बॉन्डिंग है, जिसको आप समझते हैं, जो रहे न रहे, वो आपके लिए करे ना करे, बट यू आर डूइंग गुड फॉर देम। गुड क्या है? फादर के लिए अभी आप क्या गुड करेंगे? आप पढ़ाई करेंगे। दोस्तों के लिए गुड क्या करेंगे? उसके बारे में अच्छा सोचेंगे। कॉलेज के लिए गुड क्या करेंगे? आप उसके लिए अच्छा काम करेंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा कि हमारे अंदर की जो विकृतियां हैं, बैड ट्रेड्स, वो हमारा खत्म होगा। सिमिलरली एक चीज है ग्रेटिट्यूड। यदि आप लव करेंगे ना, तो मैंने देखा है कि यदि आप लव करते हैं, लव इन द सेंस कि जब आपके अंदर प्रेम आ जाती है, भर जाते हैं आप प्रेम से, तो आपके अंदर ये बाद वाली सारी चीजें आ जाती है अपने आप। उसका कोई महत्व ज्यादा नहीं है, क्योंकि आप ग्रेटिट्यूड से ऐसे ही भर जाते हैं। आप क्या करते हैं? ग्रेटिट्यूड कि भाई कोई मेरे लिए कुछ कर रहा है, मुझे पढ़ा रहा है। यदि मैं आपको आज भाषण दे रहा हूँ जो तो आप, यू शुड हैव ग्रेटिट्यूड विद मी, क्योंकि मैंने इसके लिए तैयारी की है आपके लिए, मैंने कुछ समय दिया होगा इस पे। और ये क्यों किया है मैंने? ये आपके लिए किए हैं। आपके अंदर यदि एक अच्छी चीज आ जाएगी तो मेरे लिए भी अच्छा होगा और आपके लिए भी अच्छा होगा। तो ग्रेटिट्यूड जो है, जो कि संसार में आप रह रहे हैं, देख सुबह शाम, जैसे कि ग्रेटिट्यूड का एक, आई आई सिंस लास्ट 1 year आई एम प्रैक्टिसिंग दिस ग्रेटिट्यूड का जो फंडा है। क्या करते हैं हम? है, आप कर सकते हैं। इट इज ऑलवेज गुड कि जैसे ही मॉर्निंग में मैं उठता हूँ, तो सबसे पहले बाहर निकल के, यदि नहीं भी निकल सकते हैं, ठंडा है, बारिश से बरसात है, तो आप सबको धन्यवाद देते हैं। एवरीवन, धरती, आकाश, पेड़ पौधे, चिड़िया, तितली, वो जो आपके पूर्वज हैं, भाई बहन। मैं आपको बताऊं, मैं अपने प्यून को भी मॉर्निंग में प्रणाम करता हूँ विद ग्रेटिट्यूड, क्योंकि दिन में जब भी मैं वहां जाता हूँ 4 बार बेचारा तो प्रणाम करता ही है। तो मैं जब मॉर्निंग में उठता हूँ, उसको विजुअलाइज करके, मैं आगे थोड़ा सा 1-2 मिनट विजुअलाइजेशन पे दूंगा उसको, उसका ड्यूरिंग दिस पीरियड आई जनरली विजुअलाइज देयर फेस। आप ईश्वर को तो फेस विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप बोलते हैं ना। तो इट टेक्स अराउंड 5 minutes फॉर मी
बट यू कैन शॉर्टन इट, आप चाहते हैं तो उसको छोटा कर सकते हैं आप, लेकिन आप यू शुड हैव फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, आपके पास होना चाहिए। दिन भर आपको कोई ना कोई मदद कर रहा है, आपका कॉलेज अभी हैज अरेंज दिस वेबिनार, यू शुड हैव सम ग्रेटिट्यूड फॉर योर कॉलेज। जब अभी प्रिंसिपल साहब हुए, एवरीबॉडी जो आपके साथ जुटे हुए हैं, प्रोफेसर साहब हुए, सबके लिए आपके का होना चाहिए, अपने दोस्तों के लिए। अभी आप आपस में जूम पे बात करके कुछ पढ़ाई लिखाई करते हैं तो उसके लिए होना चाहिए। आप इसको थोड़ा इंक्रीज करके देखिए, मैं आपको एकदम दावे के साथ कहता हूं कि आपको इतना बेनिफिट होगा, यू विल नॉट इमेजिन, बहुत बेनिफिट होगा। आप ग्रेटिट्यूड को स्टार्ट करके देखिए, आप उनको धन कुछ भी थोड़ा सा किया ना, वो नहीं, वो कागजी नहीं, थैंक यू के मैसेज भेज दिए। व्हेन यू आर सेंडिंग द थैंक यू मैसेज, इट शुड कैरी योर इमोशन आल्सो विद फुल प्यार से, यार बहुत अच्छा काम किया है तो थैंक यू कर देते। आज जाने से पहले थैंक यू भेजिएगा विद फुल इमोशन है, जब मैं कल खत्म करूंगा तो। और थर्ड वन इज फॉरगिवनेस ड्यूरिंग द डे टू डे। ये फॉरगिवनेस को सीखने में टाइम तो लगता है, इट इज नॉट सो इजी, क्षमा इज नॉट सो इजी। और कहा गया है कि क्षमा जो है, क्षमा सौंपती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। जिसके पास पावरफुल है वही क्षमा कर सकता है। तो योर साइन ऑफ फॉरगिवनेस शोज योर पावर। ये बहुत दिन बाद जाके मैंने शुरू किया, खैर कोई आपके उम्र में मुझे बताता इसको, क्योंकि ये क्या करेगा, आपके मन को, बोझ को हमेशा के लिए हल्का कर देगा। आप एक बार उसको फॉरगिव करके देखिए, आपको एकदम हल्का कर देगा। और जब आप हल्का हो जाएंगे, आप हाथ डालेंगे, योर पोटेंशियल एंड एबिलिटी, यू कैन नो व्हाट आर दोज पोटेंशियल एंड एबिलिटीज एंड हाउ कैन आई एड्रेस दोज, हाउ आई कैन हार्नेस एंड हाउ कैन अचीव माय गोल। आपका मन हल्का हो जाएगा। इट इज a little bit difficult than love gratitude, forgiveness थोड़ा डिफिकल्ट है, बट इट डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिस। आप भूलना शुरू कीजिए, चलो यार जाने दो, कोई कुछ बोल दिया जाने दो। अब ऐसा नहीं गोली मार दे तब भूल जाइए। आप केस जाए करिए, अब ये नहीं गोली मारे तो गोली चलाने लगे। बट नॉर्मल कोर्स में डे टू डे की जो चीजें होती है ना, इट इज नॉट गुड टू कैरी। टाइम है, मैं एक कहानी से सुना देना चाहता था, जरा मैं इसको कट शॉर्ट करूंगा। एक काशी में, जो भी मैं ज्यादातर कहानी रियल सुनाने की कोशिश करता हूँ, तो काशी में एक मुक्ति धाम करके एक जगह है, जहाँ पे क्या होता है, काशी जाते हैं लोग जिनको स्वर्ग में जाना होता है, वो काशी जाते हैं। तो वहां भी लोग, हम लोग, आप लोग जैसे लोग तो आजकल इस शहर में ही अपना ये चाहते हैं नहीं निकलना, लेकिन बहुत सारे लोग आज भी चले जाते हैं और वहां पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। जनरली ये मुक्ति धाम जो है, काशी मुक्ति धाम, वो 15 दिन के लिए अलॉट होता है। तो जब वहां जाते हैं तो सामने वाला, वो लोग इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, 100 साल से पुराना वो आश्रम टाइप का है, धर्मशाला टाइप का, जो जान गया है कि आदमी का 15 दिन 20 दिन से ज्यादा जितना नहीं है, उन्हीं लोगों को अलॉट करता है। वन टाइम दे अलॉट फॉर द 15 डेज। एक मिश्रा जी थे, ये एकदम रियल कहानी है, इट इज दैट स्टोरी ऑफ 2016, यू विल फाइंड ऑन द गूगल। तो मिश्रा जी भी गए, उन्होंने 15 दिन के लिए बुक कराया। बुक कराना है कहने, तो पता नहीं, वो उसका जो मैनेजर का कहना है कि ही हैज सीन more than 40,000 person. Now, by seeing his face, he can find that whether that person is going to die within 3 days or not. ऐसा उसको आभास हो जाता है इतने लोगों को देखते देखते। तो थोड़ी सी बेचैन रहते थे मिश्रा जी। तो मैनेजर ने पूछा कि मिश्रा जी क्या बात है, आप थोड़ा बेचैन दिखते हैं। मिश्रा जी ने बोला कि देखिए, मैं अपने भाइयों में सबसे बड़ा था और छोटे भाई के साथ मुझे एक बार बहस हो गई। हम लोगों ने आंगन में एक दीवार खड़ा कर दिया और फिर उस भाई के साथ मैं कभी बात नहीं किया, तो मैंने पाला पोसा था और उसने मुझे कुछ बोल दिया तो खराब लग गया। अब मैं यहाँ आ गया हूँ, मुझे बड़ा भारी सा लग रहा है उसको
मैं उससे ये अपना जो ये पर्सनल ये था उसको सेटल नहीं किया, मुझे बड़ा भारी सा लगा। तो जो मैनेजर साहब थे उन्होंने तुरंत चिट्ठी भिजवाई, एक चिट्ठी कागज में लिखा और उनके गांव में भिजवा दिया कि भाई आप इमीडिएटली आके अपने बड़े भाई से मिल लीजिए। जिस दिन वो भाई आए थे, दैट वाज द 16th डे, 16वां दिन। जैसे ही भाई को देखे मिश्रा जी, आंसू की नदी जिसे बोलते हैं बहन, और अपने छोटे भाई को पकड़ लिए, बोला भाई मुझे माफ कर दो, चलते वक्त मैंने तुझसे भूला नहीं। और ये एकदम रियल स्टोरी है। विदिन 2-3 मिनट्स मिश्रा जी की जो पकड़ थी अपने भाई के ऊपर, गला से गला मिला, एक दूसरे जो पकड़ के पकड़े हुए थे, जो 2-3 मिनट वो ढीला हो गया। भाई ने, छोटे भाई ने पहचान लिया मेरा बड़ा भाई, बट वो हल्का हो चुका था। ही वॉज रेडी टू डिपार्ट। आपके लिए डिपार्चर के लिए नहीं कर रहे हैं, बट फॉरगिवनेस ऑलवेज मेक यू लाइट। इसका कहानी भी आप सुनते होंगे कि एक गिलास को हाथ में लिए रहे 10 मिनट और 2 घंटे और 5 घंटे तो हाथ दर्द करने लगता है। सिमिलर दैट, इट इज सिमिलर टू दैट। और ये सारे चीज में भी आपको दिक्कत हो तो क्या करें? यू टेक द हेल्प ऑफ मेंटर और गाइड। बट इफ यू प्रैक्टिस द फर्स्ट 3 एंड दिस 3, आई थिंक यदि 7 दिन में नहीं हुआ तो कम से कम नेक्स्ट 7 डेज में यू विल एबल टू फाइंड आउट सम ऑफ योर पोटेंशियल। एंड आपने यदि आपके पोटेंशियल एबिलिटी पता है, एंड इफ यू हैव फिक्स्ड द गोल, व्हाट यू विल डू फॉर टू अचीव दैट गोल, यू कैन नो। आप उस गोल को प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप यू कैन, इस प्रैक्टिस को करने से, जैसे कि आप हमारे अंदर से कनेक्ट हुए, बाहर को डिस्कनेक्ट किए, जब बाहर में है तो अपने अंदर को अलग रखे, दोनों की दुनिया को, जैसे बोलते हैं ना, हम लोग नौकरी करते हैं तो बोलता है कि ऑफिस को ऑफिस में रहने दो, घर को घर में रखो, दोनों को मिस करोगे तो टेंशन आएगी। उसी तरीके से जब बाहर को बाहर रहे, जब अंदर को अंदर देखेंगे और ये तीनों के प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे लोगों को से गाइड लेंगे, मेंटरशिप लेंगे, so I think we will able to identify your potential. So now we will move ahead how we can achieve the goal. तो एक काम कीजिए, अब now you have identified your potential and उस पोटेंशियल के बेस पे आपका क्या गोल है, you have identified. So the first thing one should start with affirmation. अफर्मेशन का नाम बोलते हैं संकल्प। वो पंडित जी पूजा कराने से बोलते हैं ना, जरा संकल्प लीजिए, हैं, जजमान को दान दक्षिणा के साथ इसको खत्म कीजिए, यानी संकल्प वो उनका मतलब क्या है कि जिस चीज को आप करने के लिए इस पूजा को स्टार्ट किए, उस संकल्प की वो बात करते हैं। समझ गए? तो आप उस संकल्प पे अपना ध्यान, जो भी आपको लगता है you will have to crack the that UPSC, you start feeling that आप किसी जिला के कलेक्टर। अब ऐसा नहीं है खाली कलेक्टर फील किए और काम कुछ नहीं किए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वो आगे के स्टेप्स में मैं बताऊंगा कि क्या करना है, बट आपको उसको विजुअलाइजेशन शुरू करना है। आपने देखा है ना, जब आप विजुअलाइज करते हैं, अफॉर्म करते, विजुअलाइज मतलब जब अफॉर्म करते हैं तो क्या होता है, वो शब्द में आता है और उसका आफ्टर इफेक्ट विजुअलाइजेशन। यदि मैं अफॉर्म करता हूँ कि आई विल बी अ गुड स्पीकर, तो हमें उसको अफॉर्म करना पड़ेगा, आई विल हैव टू रिलेट विद अनदर स्पीकर हु इज मच बेटर देन मी। उसके साथ मुझे रिलेट करना पड़ेगा, उसके साथ देखना पड़ेगा कि किस तरह से मैं प्लेटफॉर्म पे अपने आप को प्रोजेक्ट करके, और मैं एक लार्जर गैदरिंग में, रॉयल अल्बर्ट हॉल, इस टाइप के गैदरिंग को मैं एड्रेस कर रहा हूँ। ये हमारे पास विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन। एंड द बेस्ट अफर्मेशन इज एवरी डे, इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। तो जब आप मॉर्निंग में, जब आपने क्या किया, फील के बाद आप हियर कर रहे हैं, जब आप हियर करने के बाद आपने हियर कर ली, इस 7 डेज में आपको पता चल गया, नाउ दैट टाइम विल बी फॉर योर द अफर्मेशन, डेली, इवनिंग एंड मॉर्निंग। अब अपने आप को कहिए कि मैं बेहतर हो रहा हूँ इन एवरी एस्पेक्ट,
in every way and every day I am getting better and better. ये इतना सिंपल अफर्मेशन है, मिनिमम 10 टाइम्स, लाउडली, लेस लाउडली, फिर विस्पर एंड द मेंटल विस्पर। मतलब कि यदि आप 2 बार बोले ऐसे, जैसे अभी जिस लैंग्वेज में हम बोल रहे हैं जिस लैंग्वेज में हम आपको बोल रहे हैं, इसमें 2 बार बोले, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, 2-2 बार करके लास्ट 2 बार मेंटल चैंटिंग होता है ना, आप देखेंगे इसका बड़ा असर पड़ता है, जबरदस्त। आप अच्छा हो रहे हैं ना, एवरी वे, एवरी डे, पढ़ाई में भी अच्छा, अपने जो इंटरनल क्वालिटीज है उसमें भी अच्छा, हर चीज में अच्छा, डिसिप्लिन, मोर कंसंट्रेटेड, मोर डेडिकेटेड, मोर कमिटेड, एवरी वे। तो आपके अंदर ये गुण स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। आपका जो ड्रीम है जिसको पाना है वो आपको बढ़ता जाएगा। तो जैसे ही आप इस पे आगे बढ़ना शुरू कीजिएगा तो शैतान का आगमन होता है। शैतान तभी आता है जब भगवान आते हैं। तो जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपके अंदर क्या आएगा, फियर आएगा। जब आप आपने क्या किया, आपने पोटेंशियल किया, आपने नाउ यू हैव दैट फिक्स योर गोल। अब गोल के लिए आप आगे काम करने के लिए 2-4 चीज पॉइंट आउट किए कि भाई ये करेंगे, पढ़ाई करेंगे, कोचिंग करेंगे, थोड़ा अच्छी बातों को सुनेंगे, थोड़ा कोचिंग ऑनलाइन मटेरियल्स देखेंगे। तब आपके अंतरात्मा के कोई दूसरे कोने में बैठा हुआ शैतान बोलना शुरू कर देता है, अरे यार अभी तो सो जाओ, अभी तो कल करेंगे, परसों कर लेंगे, अरे यार ये हमसे तो नहीं होगा, वो तो बहुत पढ़ता था। ऐसा 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 हम लोगों के अंदर ये आता जाता है, आता है ना। हमें लगता है कि एवरीबॉडी हैज दिस टाइप ऑफ फीलिंग, और यदि आपके अंदर डर आता है इनिशियली इन द फर्स्ट स्टेज, तो आप यू आर ह्यूमन, इट इज अ ह्यूमन नेचर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट आपको करना क्या है, इमीडिएटली आपको क्या करना है, अच्छे गुणों के जो आप धीरे धीरे डेवलप करना शुरू किए हैं उसकी तलवार से उसको काट के आगे बढ़ना है। तो जैसे कि लेजीनेस मैंने आप बोले यार इसके लिए 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा, यूपीएससी करना है तो 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा। ओहो यार टाइम कहाँ मिलता है, 4 घंटा तो इधर, 4 घंटा उधर, 2 घंटा इधर, टाइम कहाँ मिलता है। तो इसको काटना है। आप जो मैंने पहले भी कहा कि बहुत टाइम पे आपका अंदर की पोटेंशियल को पता ही नहीं होता है। जैसे कि हनुमान जी का पता ही नहीं था कि उसके अंदर पोटेंशियल क्या है। जब जब उनको कहा गया अरे यार तुम तो कहीं से कहीं चले जा सकते हो, फिर उन्होंने हर काम करके दिखाया। और जब वो लंका में जा रहे थे तो उनको मैनाक पर्वत को लाया गया था समुद्र के बीचों बीच कि भाई उनको थोड़ा रेस्ट कराया जाए, इतनी लंबी लंबी यात्रा है। तो उन्होंने मैनाक पर्वत को प्रणाम किया। अब बोला कि नहीं नहीं, मैं यदि इस पे ठहर गया, रुक गया, तो मैं काम कैसे कर पाऊंगा। वो कहानी पता है ना कछुआ खरगोश की, वो सो गया था, कछुआ जीत गया। तो लेजीनेस को हमें अपने काट देना है, डर को काट देना है। डर आपके अंदर क्या पैदा करता है, वो आपको डिमोटिवेट करता है। जबकि आप डेली बोल रहे हैं आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, एक तरफ आप बोल रहे हैं और दूसरी तरफ डर को भी अलाउ कर रहे हैं। एक छोटी सी कहानी मैं शेयर कर रहा हूँ, इट इज ऑल्सो ए रियल स्टोरी कि जापानीज स्टोरी है कि 2 वहां पे सेना के बीच में लड़ाई चल रही। एक सेना का में बहुत कम आर्मी था और दूसरे में ज्यादा था। तो डू एंड डाई होता था कि भाई अब तो भागने का कोई मतलब नहीं है, मरना ही या तो सारा मारा जाएगा। उस रात में उसका जो कमांडर था और आपस में जो आर्मी के लोग थे जो नीचे में जो लोअर थे, उनको लग रहा था कि अब हम लोग उससे जीत नहीं पाएंगे, या तो सरेंडर कर देना चाहिए। तो कमांडर के सामने रात का स्ट्रेटजी होगा
तो कमांडर ने कहा कि नहीं, कल हम लोग फिर से अटैक करें। तो ये आर्मी के लोग उस समय तो हाँ बोल दिए, लेकिन लोग कि भाई ये तो आत्महत्या के बराबर है, तो होना। खैर, ये डिमोटिवेटेड टीम को लेकर वो कमांडर आगे बढ़ गया। मॉर्निंग रास्ते में एक मंदिर था, बहुत फेमस मंदिर। तो कमांडर बोला कि ये मंदिर तो तुम लोग कि भाई ये मंदिर, यहाँ पे जो भी हम लोग बोलते हैं वो साबित होता है। यहाँ पे मनोकामना जो होती है, मनोकामना पूर्ण वाली मंदिर है। तो इस मंदिर में चलते हैं, यहाँ पे प्रार्थना करते हैं और सिक्का से हम लोग उछाल के देख लेते हैं कि हम लोग जीतेंगे कि हारेंगे। यदि हेड आया तो जीतेंगे और टेल आया तो हार जाएंगे। इसका भी खरीद दिया जाए। बोला कि ऐसे सब लोग तो चाहता था कि इसको भी कर ही लिया टेस्ट। तो उसने उछाला तो हेड आ गया। अब जितने आर्मी के लोग थे उनके अंदर ये बात आ गई कि ये भगवान जो है, जो वहाँ के मंदिर के जो देवता है, वो चाहते हैं, वो मेरे साथ है और हम लोग जीतेंगे ही जीतेंगे। उसके बाद लड़ाई हुई और ये छोटी सेना होने के बावजूद भी वो सेना उस बड़ी सेना पे जीत हासिल कर। जब 2-4-5 दिन जब युद्ध खत्म हुआ तो आपस में जब कमांडर के सामने लोग खड़ा हुआ, बोला कि बहुत अच्छा हुआ मंदिर में गए और वहाँ पे आपने जो वो किया उससे हम लोग के अंदर बहुत मोटिवेशन आया। बोला कि देखो, उस सिक्का में मैंने दोनों साइड में हेड ही रखा था, क्योंकि तुम लोग के अंदर मैं भांप गया था कि तुम लोग के अंदर जो डर है वो पैदा हो गया। तो डर को हमें काट देना है। और कोई ऐसा आदमी है, देखिए तो किसी की कहानी पढ़िए तो जो अभी सक्सेसफुल जितने लोग आ रहे हैं, तब हम ही आप जैसे लोग से आगे ऊपर बढ़े हैं। तो जब वो बढ़ सकते हैं तो हम लोग भी बढ़ सकते हैं, हमारा जो भी पोटेंशियल के ऊपर में होगा। है आगे जरा सब बढ़ा दीजिए जरा। नहीं नहीं, थोड़ा उस जस्ट उसके पीछे जाइए जहां पे अभी खत्म किए थे, और पीछे। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। और उसके बाद क्या है, जब हमने क्या क्या किए, हमने अपने पोटेंशियल को पता लगा लिया, हमने अपना गोल फिक्स कर लिया, हमने अपना हम अपने अंदर जो उसकी डर है या जो भी उसके चीज, उसको मैंने काटा पीटी जो करना है करके आगे बढ़ रहे हैं। डेली आता है ये तो डर और लेजीनेस, एक रेगुलर फेनोमेना जो कि आपके साथ आएगा और डेली आपको काटना पड़ेगा अपने विल पावर। और उसके बाद आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आपका था हार्ड वर्क एंड पेशेंस। तो हार्ड वर्क और पेशेंस में सबसे अच्छी कहानी जो है वो एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन का। उन्होंने जो बल्ब बनाया था उसको 1000 टाइम्स उन्होंने किया था। कभी कोई उनसे पूछा, अरे आप तो 1000 बार फेल किए तब जाके हुआ, लेकिन नहीं नहीं, दिस हैज बीन क्रिएटेड इन 1000 स्टेप्स। तो जब आपने फिक्स कर ली कि हमें यही करना है, तो उसमें डेडिकेटेड होकर हमें विथ फुल पेशेंस, विथ फुल अपने ऊपर फेथ, हमें उसे बढ़ना है। इस पे मैंने जानबूझकर आपको चीटी चीटी का दिया है। चीटी सही में इतना बड़ा उठा के ले जाता है और वो उसको माना जाता है कि उसकी पेशेंस जबरदस्त है। ठीक है, आगे आ जाइए। और फिर आप जो काम जिस पे आपने कुछ भी किया, जो भी किया है, जो भी आपने चूज कर लिया, अब आप डेली मत चेंज कीजिए, बस उससे प्यार कर दें। जब उससे आप प्यार करेंगे, डू व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू। हर एक क्षण आप उसको प्यार कीजिए। आपको एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, ठीक है, हम एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे। एक सिविल के लड़के भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। आजकल व्हाइट हैट जूनियर का आता है एडवर्टीजमेंट, बोलता है हम बच्चा को भी कोडिंग सिखा देंगे। तो कोई बड़ा चीज है बाबा, माइनिंग का बच्चा भी सीख सकता है, इसका मतलब। वो तो छोटा बच्चा को बोलता है, 8वां का बच्चा, 6ठा का बच्चा को लाइए सिखा देंगे। तो आप कुछ भी कर सकते हैं।
आप देखिए सिविल सर्विसेज के डेली वो आते हैं, सक्सेस स्टोरी आता है। कुछ भी कर सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, आप भी कुछ भी कर सकते हैं। बस आपको पता ना लगाना है कि आप चाहते क्या है। जो आज का टॉपिक है, आपके अंदर में वो छुपी ही इच्छा क्या है, क्या बनना चाहते हैं। जरूरी नहीं कि आईएएस बन, एक अच्छा पेंटर भी बन सकते हैं, एक अच्छा गायक भी बन सकते हैं, कुछ भी बनना है, जो बनना है, एक अच्छा लेखक भी बन सकते हैं। वहां लिखना, मैं दूसरा बुक भी लिख रहा हूँ, टाइम लगता है, हमें टाइम निकालना पड़ता है ऑफिस के बाद भी, छुट्टियों के दिन, सैटरडे संडे। तो यू कैन डू मिरेकल, यू कैन डू एनीथिंग, कुछ भी आप कर सकते हैं, बट आपके अंदर वो पैशन चाहिए। तो इसमें एक चीज और बचना चाहिए, वो क्या है, जब हम अभी हनुमान की कहानी जो बता रहे थे, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। आजकल पिछले 1 सप्ताह 10 दिन से मैं थोड़ा इसको बहुत ध्यान दे रहा था। उसमें एक कहानी आती है कि सुरसा आती है, अभी है 10 मिनट्स, आई विल ट्राई टू फिनिश। तो सुरसा के मुंह में, सुरसा जैसे जैसे सुरसा का मुंह बढ़ाता है, तैसे तैसे ये दुगना करते जाते हैं, और अचानक वो छोटा हो जाता है। तो जब छोटा होते हैं और मुंह से निकल जाते हैं, जबकि इसका उद्देश्य था कि इनकी बुद्धि और विवेक को देखा जाए। बट इसका एक और मीनिंग है कि जहां जरूरत पड़ा, अपने अहंकार उसको मत कहिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किए, अपने बल का प्रयोग किया, मतलब कि आपकी जानकारी का प्रयोग किए, और जब जरूरत पड़ा हम उसका इस्तेमाल किए। लेकिन जब ऐसा जरूरत पड़ा कि हमें विनम्र भी बनना है, छोटा भी बनना है, लेकिन क्योंकि हमारे काम, हमारा उद्देश्य को देखना है, तो हम इमीडिएटली विनम्र भी बन के अपना काम निकाल के चल पड़े। जहां दिखाना है, जैसे हमको प्रेजेंट करना है, 4 हमारा कंपटीटर है, तो वो जितना दिखाएगा उसके 4 गुना मैं दिखाऊंगा, ये हमें बताना है। बट हमें हो सकता है कि किसी ऐसा जिस फील्ड में हम कहना चाहते हैं उसके सामने जाके हमको बताना है, तो हो सकता है हम विनम्रता के साथ बात करें। मतलब कि ये आपको इंटेलिजेंटली आपको देखना है। एंड ये कहाँ से आएगा? इट कम्स फ्रॉम द विजडम, जिसको विवेक बोलते हैं। बुद्धि और विवेक में थोड़ा अंतर है, विवेक बोलते हैं। तो विवेक का इस्तेमाल करें, तो ये धीरे धीरे आप प्रेम, ग्रेटिट्यूड और फॉरगिवनेस को आप प्रैक्टिस करेंगे, तो विवेक का भी अंदर की जो है, विवेक अंदर क्या चीजें हैं, इट डिपेंड्स ऑन द दैट स्टडी। बट बहुत सारे पढ़ा अनपढ़ आदमी के अंदर भी जो विवेक होती है, आप उसका तुलना नहीं कर सकते। और आगे जरा सा बढ़ा दीजिए। एंड टेक बेबी स्टेप, एंजॉय लो हैंगिंग। और जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ते जाइएगा, वैसे वैसे आप, जैसे कि आपको भागलपुर से जाना है पटना, और रात्रि के समय आपको चलना है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो आप यहीं से बैठ के पटना का ब्रिज देखना शुरू कीजिए। ऐसा तो नहीं होता है। रात में चल रहे हैं तो आपकी गाड़ी की हेडलाइट जितनी दूरी आपको 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर दिखा रही है, आप उसी हिसाब से चल रहे हैं। यू आर टेकिंग बेबी स्टेप्स। बट आपको क्या जानना है कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक, सही डायरेक्शन में है, और बेबी स्टेप्स उठाते जाना है। ये नहीं कि एक ही दिन में हमको हासिल करना है, एक ही दिन में हमें यूपीएससी नहीं कंप्लीट करना है, एक ही दिन में हमको सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनना है, एक ही दिन में हमको राइटर नहीं बनना है। मैं अपना बुक पहले लिखना शुरू किया था, आई स्टार्टेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल आई थिंक। तो पहले मैंने क्या किया, जो उसका प्रस्तावना होता है ना, जो फर्स्ट पेज, उसको मैंने अपने फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, एंड इट वाज अप्रिशिएटेड अ लॉट। एवरीबॉडी वाज अप्रिशिएटिंग अबाउट दैट फर्स्ट पेज, प्रीफेस जिसको बोलते हैं। तो हम उसको एंजॉय कीजिए, जो थोड़ा अच्छा करे उसको एंजॉय कीजिए। तो क्या होगा, उसके अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आप उसको लेके आगे बढ़ सकते हैं। आपके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आना शुरू करेगा। और जो अच्छी चीजें मिलती है, अच्छा चीज बीच में जितना करते हैं, उसको एंजॉय कीजिए। एंजॉय नहीं कि करने का ये मतलब नहीं हुआ कि थोड़ा हुआ तो 10 दिन आप सोते रह गए। और एंजॉय करने का मतलब कि उसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, तो चाय पी लीजिए उसी के नाम पे, किसी को पिक्चर दिखाना है तो पिक्चर दिखा लीजिए। और द सेट योर, अगला बताइए, सेट योर ओन बेंचमार्क। आगे स्लाइड बढ़ा दीजिएगा, स्लाइड को थोड़ा और आगे बढ़ा। हाँ। और आप क्या कीजिए, हाँ ठीक है,
ठीक है ठीक है ठीक है, आगे चलिए। ये दोनों चीज हमने एक ही साथ शेयर कर दी, आगे आइए। हाँ, होता क्या है, व्हाई आई हैव यू टोल्ड यू दैट, कि जिंदगी जो है, यहाँ एक लाइन लिखा हुआ है, लाइफ इज नॉट ए स्प्रिंट, इट इज ए मैराथन, सेट योर ओन बेंचमार्क। ये ऐसा नहीं है 100 मीटर का दौड़ है, हम फटाक से कंप्लीट करना है। इट इज ए 45 किलोमीटर लॉन्ग रेस। वहां में कभी आगे आएंगे, कभी पीछे जाएंगे, कभी आगे आएंगे, दैट अल्टीमेटली आई हैव टू अचीव द गोल ऑन रिकॉर्ड टाइम। बस इतना ही केवल ध्यान रखना है। और इस मैराथन में कभी पानी पीने के लिए सुस्ताना भी पड़े तो कोई बात नहीं। माइंड से और मोरली हमें डिमोटिवेट नहीं होना है, हमें आगे बढ़ते जाना। टाइम तो नहीं है, मैं जल्दी से खत्म करूँ, आगे आइए। एंड द लास्ट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट। 24 घंटा ही समय सबको दिया गया है। यही बड़ा आश्चर्यजनक है। अदरवाइज तो बिल गेट्स को पैसा से खरीदना होता तो हो सकता था एक दिन में 100-200 घंटा खरीद लेता। या आदमी के अंदर होता ना कि किसी का दिन बड़ा करने, किसी का दिन छोटा करने का, तो किसी का टाइम वो खरीद लेता। लेकिन एवरीबडी हैज ए सेम टाइम, 24 आवर्स। वो बिल गेट्स हो, करण बजाज, अभी मैंने व्हाइट हैट जूनियर की बात कर रहा था, करण बजाज द फाउंडर ऑफ व्हाइट हैट जूनियर। अभी वो 3000 की 4000 करोड़ रुपया में उसको बाइजू ने खरीदा है। आपके जैसा, हम लोग जैसा वो भी एक आदमी। रितेश अग्रवाल द फाउंडर ऑफ ओयो। फणींद्र सामा रेड बस का जो मालिक था, जो फाउंडर है, लड़का है, तब तो शादी नहीं किया, मेरे मदद से 2-4 बार मुलाकात हुई है। आपका फेवरेट कप्तान राहुल द्रविड़ हो तब, या धोनी जी हो तब, एवरीबडी हैज 24 आवर्स। लेकिन उन्होंने क्या, ये लोग के अंदर एक बात जरूर है कि यूटिलाइजिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, इज टेकिंग डूइंग द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द टाइम। 24 आवर्स है तो कितना देना है, पढ़ना कितना है, खेलना कितना है, सोशल एक्टिविटी कितना करना है, सोशल मीडिया पे कितना देर रहना है, गपशप कितना बात करना है, ठीक है ना। ये अपने आप को उस ढंग से डालते हैं, और ये इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। यदि आपको 24 घंटा है, ये 24 घंटा आपको वापस नहीं आ रहा है। इट इज एज इक्वल एज इफ यू हैव गिवन अ 20 गोल्ड दैट कॉइन, और आपको कहा जाता है कि यू यूज्ड 24 कॉइन, अदरवाइज इट विल बी टेकन बैक। तो क्या करेंगे आप, उसका कोई अच्छी अच्छी चीजें डेली करेंगे ना। इसीलिए अच्छी चीजों में भी हम अपने आप 24 आवर्स को बिताते हैं, दैट विल बी वेरी गुड। आगे जरा सा बढ़ाइए तो इसको फटाफट कैसे टाइम मैनेजमेंट की छोटी छोटी में, लंबा लगता है कि शुरू में ही लंबा चला गया, आगे बढ़ाइए। तो इसमें फटाफट क्या करना है, लिस्ट टाइम वेस्टर। आप अपने टाइम कहाँ कहाँ वेस्ट कर रहे हैं, यू जस्ट लिस्ट आउट दैट एंड ट्राई टू, उसको आप चाकू से काटने की कोशिश कीजिए टाइम वेस्टर्स को। सोशल मीडिया के जो नोटिफिकेशन है, एटलीस्ट ट्राई टू हाइड द नोटिफिकेशन ऑफ सोशल मीडिया। डेली का यू ट्राई टू सेट द डेली गोल्स। जब मैं बुक लिखना शुरू किया था, आई हैव सेट, आई इनिशियली आई ट्राइड भाई there will be 25 chapters and I fixed the date of each chapter. ग्रेजुअली थोड़ा ऊपर नीचे चेंज होता है, 25 चैप्टर में 2-3 चैप्टर हट गया, दूसरा 2-3 चैप्टर आ गया, बट कुछ टाइम लाइन जो मैंने बांध के रखा था, आई ट्राइड टू स्टिक ऑन दैट टाइम। तो आप भी अपने गोल्स को सेट कीजिए एंड उसको ट्राई कीजिए कि उसको फेल ना कीजिए। 90% टाइम उसको, उस पर आप 100 उसमें उतरिए, उसको फॉलो कीजिए और कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क फर्स्ट। और यूज डेट टाइम, जब कुछ नहीं कर रहे हैं, ट्रेन में सफर कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो अच्छी चीजों को सोचिए, अच्छी चीजों को बात कीजिए, और अच्छे काम पे आप अपने ही गोल के आसपास ही इसको ट्राई कीजिए कि फिनिश करें। और लदक पदक फटाक से जरा सा लास्ट में आ जाइए, हमको आई थिंक इट इज द लास्ट वर्ड। So I have written this book. You can go on that. You will find. और आगे आ जाइए। That its name is Kalpana Topic and it is. But before finishing, I would like to share one success story, recent success story of one of my colleague. And when I was the CEO, Chief Executive Officer of that Innovation Lab, तो 2 बच्चे थे,
ये मैं आई थिंक आई विल टेक नेक्स्ट 3-4 मिनट। तो वो 2 बच्चे थे हु वाज कंसल्टेंट इन अर्नेस्ट एंड यंग। अर्नेस्ट एंड यंग कंपनी का नाम सुने होंगे। ऐसा नहीं था कि वो कोई आईआईटी के बच्चे थे, बट दे आर तो 2 बच्चे उसमें थे। दे आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड दे हैव कंप्लीटेड देयर इंजीनियरिंग फ्रॉम पुणे। और एक लड़का था, ही वाज द चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो तीनों जो था वो हमारे यहाँ आई डिपार्टमेंट ऑफ आई वाज आल्सो डायरेक्टर आईटी। ऑल 3 आर कंसल्टेंट इन आवर आईटी डिपार्टमेंट। उसने कहा कि सर ये सब जो कंसल्टेंसी का काम है, हम लोग चाहते हैं कि हम कुछ करें, कुछ अपना फॉर्म खोलें। मगर यार बहुत अच्छा है, मैं तो आई ऑलवेज प्रिफर कि लोग अच्छे अपना काम करें। तो क्या हुआ कि वो कुछ दिन बाद, लगभग 2016 की बात, दे हैव लेफ्ट द जॉब। हमें फोन किया कि सर आई हैव लेफ्ट द जॉब एंड आई हैव स्टार्टेड सेलिंग दैट गोट मिल्क इन दिल्ली। दिल्ली ऑफिस में था, ईएनवाई के दिल्ली ऑफिस में था, गुड़गांव ऑफिस। तो मैं कहा ये तो नया, तो तुम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, यू आर सेलिंग वो गोट मिल्क। लगे नहीं सर, यहाँ डेंगू का फीवर बहुत ज्यादा है, तो इट हैज अ पोटेंशियल ऑफ दिस, क्या कहते हैं इसका, गोट मिल्क को बेचने का बहुत अच्छा है। तो 400-500 रुपये किलो लीटर बिकता है वो, और डेंगू फीवर में काम आता है। तो वो क्या करता था, करना बेचना शुरू किया। बट क्या हुआ कि बाय दैट ही हैज स्टार्टेड दिस जॉब इन जून, बाय द एंड ऑफ द नवंबर डेंगू फीवर खत्म हो जाता है, तो उसका जीरो हो गया। दिस इज अ मैराथन, जैसे मैंने अभी बात की, वो जीरो हो गया। अब वो परेशान हुआ, अब तो जीरो हो गया। तो उसने ही हैज लर्नड वन लेसन कि हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो कि सीजन बेस्ड, इट शुड हैव अ रेगुलर डिमांड। तो क्या हुआ कि उसका फिर तब उसने क्या किया कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था, उसने टैक्स का कंसल्टेंसी देना शुरू किया लोगों को, वही गुड़गांव के आसपास महिपालपुर वगैरह। और इस तरह करके अगले 3-4 महीनों में ही हैज एक्वायर्ड अराउंड 400 to 500 businessmen. Then that out of three, two were from the Jaipur. They shifted to Jaipur. अच्छा, कॉल आ गया। They shifted to 1 minute please, थोड़ा सा। तो वो क्या हुआ कि am I audible? आवाज आ रही है? Yes, yes. हेलो, Coming. हेलो, आवाज आ रही है हमारी? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ। Yes, I am listening. क्या हुआ कि उसने वहाँ पुलिस डिपार्टमेंट में मुलाकात की और कहा कि सर ऐसा है, मैं आपके पुलिस का 100 रुपीज में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दूंगा। तो सब लोग तैयार हो गए, चलो भाई 100 रुपया कौन बड़ी बात है। तो लगे सर मैं यहाँ पे एक कैंप लगाना चाहता हूँ। अब सोचिए कि अर्नेस्ट एंड के आप ऑफिस में जाएंगे, मैं 2-3 बार गया हूँ, इतना बड़ा विशाल ऑफिस है और बढ़िया से कैंटीन फैसिलिटी, एवरीथिंग वाज देयर। बट वो क्या किया, एक छोटा सा स्टॉल लगा के पुलिस डिपार्टमेंट के आगे ही हैज एक्वायर्ड 3000 पुलिस का उन्होंने स्टार्ट किया। एंड फ्रॉम वोडाफोन आइडिया दे हैव आल्सो दैट 2000 एम्प्लॉय का उनका करना शुरू किया। तो इस तरह से somehow they have managed 5000 लोगों का उसने इनकम टैक्स रिटर्न, नॉर्मल इनकम टैक्स रिटर्न करना शुरू किया। और जो 2 बच्चे थे, दे हैव ट्राइड टू मेक ए सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, बट उसको
फर्दर एक्सकेलेट करने के लिए एंड सर्वर एक्सेट्रा के लिए दे नीड एटलीस्ट 1 करोड़ रुपीस। तो अब आप नाउ दे हैव 5000, उसके पास 5000 लोग थे। अब वो चाहा कि पैसा कहाँ से आए, दे स्टार्टेड मीटिंग डिफरेंट पीपल जिनके पास जो पैसा वैसा लगाते हैं, और उनके पास उसने एक प्रेजेंटेशन दिया। सब जगह वो थका नहीं, करीब 10-15 जगह पर प्रेजेंटेशन दिया, और हम लोगों से भी टच था। वी ऑल्सो सपोर्ट देम एट द टाइम ऑफ, मैं जब वहाँ पे सीईओ था। और संयोग से एक इन्वेस्टर से दे मैनेज 6 करोड़। उसने बताया कि यदि मुझे 5,000 रुपया, 5,000 लोगों को मैं कर रहा हूँ, तो हाउ आई विल ग्रो विद इन नेक्स्ट 3 years। और यदि मुझे इसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा तो मुझे किसी के घर नहीं जाना पड़ेगा, एवरीबडी कैन यूज माई प्लेटफॉर्म एंड दे कैन फाइल देयर रिटर्न। तो उस तरीके से क्या हुआ कि जो आदमी ने इन्वेस्ट किया 6 करोड़, उसने कहा कि ठीक है 3 साल में करोगे तो एवरी ईयर आई विल गिव यू 2 करोड़। तो 2016, 16, 17 और 19, 17, 18 और 19 में ही गॉट 6 करोड़, एंड जो उसने वादा किया था उसके हिसाब से वो बढ़ना शुरू किया। नाउ आप जब आप, मैं एक उसका वेबसाइट का एड्रेस बता देता हूँ, टैक्स टू विन, TAX, 2 डिजिट में है, WIN, टैक्स टू विन में आप खोजना। 10 days back he told me that, sir, I am going to sell my company at the rate of 36 crore, and there is one company from US, the SoftBank. Hello. Yes, sir, you are audible. You may proceed, sir. Yes, you are audible, sir. हेलो 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 Hello. हेलो Oh, hello. जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपकी? Oh, hello. Yes, sir, you are audible, Hello. sir. Hello. Yes. Yes, sir, you can talk, आवाज sir. आ रही है क्या? हाँ सर, हेलो. आवाज आ रही है. हेलो. हाँ सर, आवाज आ रही है सर आपकी. हेलो. यस सर, आपकी आवाज आ रही है सर. हेलो। कंटिन्यू कीजिए सर. कंटिन्यू कीजिए सर, आपकी आवाज आ रही है सर.
हाँ एक्चुअली लगता है मेरा व्यू मेरा मतलब मोबाइल डिस्टर्ब हो गया डिस्टर्ब कर रहा था खैर लिसनिंग मी so I would like that Tag to Win has acquired 36 crore and 3% within 4 years, 4.5 years, they earned around 36 crore. So I देखे कि he has started his business. He has started his business from the selling the good milk. आप चाहिए कि good milk start किया and ठीक he has started his journey. There is a marathon. You find some pure, some success, but आपसे लर्निंग के हमें आगे बढ़ना है जैसे हमें अपना गोल्स किया जी वी हैव आइडेंटिफाइड आवर पोटेंशियल एंड एक्टिविटीज वी हैव बाय आवर गोल and then we have taken that formation on daily basis. Formation and visualization should be a regular practice from everyone. आपको ये करना चाहिए डेली अब तक लड़के ने दैट काउंटर ऑफ द सन अभिषेक उसने कहा सर आई हैव इटन मैंने बाथरूम के अभी उस बच्चे ने कहा अभी जो लड़ा है उस सारी की कब पासपोर्ट 2004 में पाया था इंजीनियर चार्टेड अकाउंटेंसी और उन्हें कहा कि इन माय थ्रू के मैं आवाज लिख रखा था आई विल अर्न 3 करोड़ इन 2 years और आई कैन मेक 36 करोड़ में दैट ट्रांसफर आएगा टैक्स ये है मेरे साथ जुड़ा है तो ये कहा है कि एनी कैन डू और अपनी कहा है थोड़ा दिक्कत तो है तो भाई मैंने बेटी मैंने कहा नौकरी टू बी सैलरी एवरी ट्राई टू अभी मेरे आदमी भी करता है जैसे हम हैं बट बिजनेस आप सकते हैं इफ यू वुड लाइक टू अचीव कुछ अचीव कर सकते हैं तो ट्राई टू एटलीस्ट 3-4% ट्राई टू गिव जॉब ऑफ 3-4%। ऐसा सोचिए कि मैं एक ऐसा दूंगा वेंचर जिसमें 3 से 4 लोगों को दूंगा फिर देखिए हो सकता है कि आप अपने आप में 4 जितने बैचमेट है 400-500 लोग एक 100 कंपनी खड़ा करेंगे 400-500 आपस में ही मिलकर नहीं सकते इट इज ऑलवेज ट्रू बट हमें लगता है कि नो गोल ऐसा भी नहीं है कि वी कैन अचीव थैंक यू दैट देयर इज अ प्रॉब्लम आई क्यों ऐसा हो गया कैन नॉट there might be some problem but thank you principal sahab and all the that person who just participated and especially principal Amal sir, Professor Shekhar sir, Mr. Sweet Mane and Dr. Rajesh who has given me opportunity to interact with all of you and I think from today everybody will start the visualization, the goal. You try to visualize your goal and you try to feel that you have the goal. आपको वही सोचना है आपको सोचना है कि you have thought that you will ये सिल्वर सर्वेंट तो आप जैसा सिल्वर सर्वेंट है आप डेली फील कीजिए कि आप वहां बैठे हुए हैं और फिर जब आप समय बर्बाद करते रहे तो बोले यार यहाँ पर कैसे बैठे यदि मैं वो काम ही नहीं करूँगा हाउ आई कैन अचीव द टारगेट थैंक यू थैंक्स a lot to all of you and I will try I have faith that everybody will get benefited and you all dedicated committed to achieve your
vision, your dream. Thank you. Thanks once again. Thank you, sir. Thank you very much for enlightening us on this topic, that harnessing potential and ability to become successful. Now I request all participants or students to ask questions directly to our speaker. Students, you may ask questions directly. No more questions. The students are not asking any questions, sir. So now I request Professor Shashank Sekhar to give vote of thanks to all. Sir, please. अ, अ, मैं उमेश जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि एक बहुत ही सामयिक विषय पर हमारे छात्रों के बीच, हमारे टीचर्स के बीच उन्होंने अपनी बातें कही, और ये बातें छोटी छोटी जो कहानी के रूप में कही, जो बहुत ही प्रेरणादायक है। हर कहानी अपने आप में प्रेरणा का स्रोत लेकर के हम लोग के सामने में आई, और ये जो जीवन के छोटे छोटे पहलू हैं जिसको हम जनरली नजरअंदाज करते हैं, जिसके प्रति हम आकृष्ट नहीं होते हैं, उन छोटे छोटे पहलुओं को जानने की जरूरत है। उमेश जी ने बात किया कि जीवन को अंगीकार करने के लिए, उत्कृष्ट बनाने के लिए, एक सफल इंजीनियर बनने के लिए, एक सफल मनुष्य बनने के लिए किन किन बातों की जरूरत होती है। जैसे उमेश जी ने बात की लव का। लव जो है ये बहुत ही उम्दा एलिमेंट है, और लव के साथ इन्होंने बात की ग्रेटिट्यूड की, और ग्रेटिट्यूड के साथ इन्होंने बात की फॉरगिवनेस की। ये जो तीनों कॉम्बिनेशन है, तीनों एस्पेक्ट है, लव, ग्रेटिट्यूड एंड फॉरगिवनेस, इसके साथ आदमी बहुत ही उत्कृष्ट उत्कृष्ट हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो जितने भी टिप्स आपने बताए, छोटे छोटे टिप्स बताए, हमारे छात्र जो हैं इन छोटे छोटे टिप्स को लेकर करके जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां हैं, बहुत सारे डाइवर्जेंस हैं, लेकिन उस डाइवर्जेंस को आप देखिए नहीं, अपने आप को, आप कोई चीज को फील कीजिए, कोई चीज को सुनिए, हियर कीजिए। तो ये सब जो और बहुत सारी चीजों को देखते रहिए। जब आपने बहुत अच्छी बातें कही उमेश जी, आपने कही कि जब आप कोई एक काम करते हैं तो वही एक काम कीजिए, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। बहुत ही सही बात आपने कही कि एक वक्त में एक ही चीज कीजिए। जब आप किसी चीज को सुन रहे हैं तो सिर्फ सुनिए, जब पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़िए, जब आप नेचर के साथ बात कर रहे हैं तो सिर्फ नेचर को विजुअलाइज कीजिए, देखिए, और तब उससे जो अच्छी चीजें हैं उस पर आप इंट्रोस्पेक्ट कीजिए और देखिए। तो आप
सचमुच में एक सफल व्यक्तित्व हो सकते हैं, सफल इंजीनियर हो सकते हैं, सफल डॉक्टर हो सकते हैं, आप आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, और आपके लिए ये अनंत है, सफलताएं जो ये अनंत है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो सचमुच में यह जो आपका डिस्कोर्स रहा, ये जो डिलिब्रेशन रहा, ये छात्रों के लिए तो उम्दा था ही, उनको तो सीख लेनी ही चाहिए। साथ साथ हम लोगों को, हम इस उम्र के इस पड़ाव में भी आ गए हैं, फिर भी जीवन को अस्थिर नहीं कर सकते हैं। हर दिन एक नया चीज सीखने को मिला है, और आज का दिन मैं समझूंगा एक बड़ा सदुपयोगी रहा कि आपकी अच्छी अच्छी बातों को सीखा हूं, और मैं चाहूंगा कि आने वाले दिन में इन सब बातों पर अमल कर सकूं और अपने जीवन को और श्रेष्ठ बना सकूं और उत्कृष्ट बना सकूं। तो मैं तहे दिल से अपने प्राचार्य डॉक्टर निर्मल कुमार का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इन चुनिंदे व्यक्तित्व को हम लोगों के सामने, छात्रों के बीच में, भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, बांका इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों के बीच में इन लोगों को लाया, इन लोगों से रूबरू कराया, और अच्छी अच्छी बातों को सुनने का मौका लगा। वैसे तो चूंकि यही एक एडवांटेज है डिजिटल वर्ल्ड का, तो आप ये देखिए कि ये जो डिजिटल वर्ल्ड, ये कोविड का पीरियड है, जब हम क्लासरूम में इंटरैक्ट करते हैं तो इतने सारे लोगों से शायद ही मिल पाते, लेकिन ये डिजिटल वर्ल्ड के कारण ही आज हम दुनिया के तमाम अच्छे लोगों के साथ, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर है, आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी पटना है, और भी तमाम लोग हैं जिनको हम लोग सुन रहे हैं और उनकी बातों को अपने जीवन में ले जा रहे हैं और उससे अपने जीवन को और उत्कृष्ट बना रहे हैं। सो थैंक यू प्रिंसिपल, थैंक यू उमेश जी फॉर अ वेरी इल्यूमिनेटिंग टॉक, थैंक यू फैकल्टी मेंबर्स, thank you Sumit Mane, thank you CM Rajesh for brilliantly coordinating the whole program. Thank you once again to all of you for a patient listening. Thank you. Thank you Sumit. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you Sumit. Somehow I think there is a problem, I think in by my tab only. Now I have used my second phone and I am connected through that only. जी 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 उमेश जी, जी उमेश जी। So if anybody have any question, and then I can answer, and otherwise we can stop here. उमेश जी, आपने बहुत सारी बातें बताई। जो सबसे महत्वपूर्ण बातें मुझे लगी वह आपने बात की लव, ग्रेटिट्यूड और फॉरगिवनेस। यह जो तीनों एलिमेंट लाइफ का है, यह तीनों को प्रैक्टिस करने पे जीवन मुझे लगता है अपने आप उत्कृष्ट हो जाएगा। वैसे तो लाइफ में इतने सारे डायमेंशंस हैं, इतने सारे एलिमेंट्स हैं कि इसको सचमुच में, क्योंकि इसमें एक नहीं, ये हजारों वैल्यूज लाइफ के हैं। लेकिन अगर हम धीरे धीरे तीन चार जो मुख्य एलिमेंट्स हैं, जैसे आपने बताया लव, ग्रेटिट्यूड और ये फॉरगिवनेस, अगर इन तीनों को अपनाया जाए तो और जितने भी वैल्यूज हैं अपने आप स्वतः जो है वह आदमी को निखार देता है और आदमी उत्कृष्ट बन जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आपने की, लव, फॉरगिवनेस और थैंक यू सर, थैंक यू। इससे आदमी जो है खुद वो जो कभी कहते हैं ना कि जो एक वर्ड आता है, जी में एक वर्ड आता है कैथारसिस वर्ड है। तो कैथारसिस जो है ये क्या करता है, जो जितनी भी इंप्योरिटीज हमारे सोल में है, इंप्योरिटीज हमारे हार्ट में है, हमारे माइंड में है, उसको क्लींस करता है, उसको साफ करता है। तो मैं ये मानता हूं कि आप जिन जिन मूल्यों को स्थापित करने की आज कोशिश की है, उन सभी से जो ये कैथारसिस का काम करेगा, इट विल हैव कैथार्टिक इफेक्ट, और इससे जो है वी विल बी एबल टू prune, weed out those impurities from our mind and soul. So thank you for such a beautiful and illuminating talk this afternoon, Umesh ji. Thank you, thank you.
Thank you, sir. Thank you very much. So now with this, shall I close this session, sir? I would request the principal to declare this session closed. Yes. If principal is here, could I request the principal to declare this session closed, please? I think sir is So with the permission of the principal, I declare this session closed with once again expressing my gratitude to Umeshji for a very brilliant and illuminating talk. Thank you once again. thanks a lot, Thank you. sir, for inviting me for this interaction. I will try to connect with you in future also. Thanks a lot. Thank you. Thank you. Thank you all participants. Thank you.